بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ آج جو میں ناول ریڈ کر رہی ہوں وہ ہے حیات لے کے چلی از قلم عالیہ بخاری۔ چلیں بنا دیر کیے شروع کر لیتے ہیں، اور باقی لائک تو آپ نے ویڈیو کو کر ہی دیا ہوگا، ہے نا؟ چلیں شروع کر لیتے ہیں۔ ٹیوشن پر آنے والے بچوں کو آج اس نے معمول سے زیادہ وقت دیا تھا، اور اس کا تو ابھی بھی آدھ گھنٹہ مزید کھینچ لینے کا پروگرام تھا، مگر بچے گھبرانا شروع ہو گئے تھے۔ پرائمری کلاس والے تینوں بچوں نے تو صاف لفظوں میں چھٹی کی فرمائش کر دی تھی، سو اسے ان کی بات ماننی پڑ گئی۔ البتہ احمد اور اکمل کو اس نے روکے رکھا، یوں بھی ان کا میٹرک کا سال تھا اور ان کی پڑھائی مزید محنت مانگتی تھی۔ پلیز نگین باجی اب بس کریں، باقی کل دیکھ لیں گے نا۔ میتھس کی ایکسرسائز ختم کر کے اکمل بھی بول پڑا۔ تمہیں کیا جلدی ہے؟ اس نے ہلکی سی خفگی دکھائی۔ آج میں فارغ ہوں، تھوڑا سا ایکسٹرا کام کر لیتے ہیں پلیز۔ اس نے اپنی درخواست واپس نہ لی۔ احمد بھی اس کے آنکھ کا اشارہ پا کر میدان عمل میں آ گیا، اور یوں چند منٹوں میں وہ دونوں نگین کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ کسی بہت ضروری کام کے لیے گھر والے ان کے منتظر بیٹھے ہیں۔ نگین کے حامی بھرتے ہی دونوں نے کتابیں سمیٹنے میں کمال کی پھرتی دکھائی، اور یہ جا وہ جا۔ شام گہری ہو رہی تھی اور ہوا میں خنکی کا ہلکا سا احساس ہونے لگا تھا۔ اندر کے کمرے سے امجد اور امی کے بولنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے کیا؟ امجد کی سائے دن کی آمد سے چڑھ کر اس نے بے اختیار سوچا۔ کمرے میں جانے کے بجائے وہ کچن میں چلی آئی۔ امجد کی بے سروپا باتیں سننے سے بہتر تھا کہ وہ رات کے لیے آٹا گوندھ کے رکھ دیا جائے۔ سنک پر چائے کے خالی کپ دیکھ کر وہ پہلے انہیں دھونے لگی۔ چلے گئے تمہارے اسٹوڈنٹس؟ امجد دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ وہ پیٹھ موڑے اپنے کام میں مصروف رہی۔ کافی دل لگا کر پڑھاتی ہو۔ اس بے وقوفانہ سوال کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا، لیکن خلاصی پھر بھی نہیں ہو پائی۔ روزانہ اتنی دیر ہی پڑھاتی ہو؟ امجد کی کہی گئی باتوں کا مطلب عموماً وہ نہیں ہوا کرتا تھا جو اس کے لبوں سے ادا ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ وہ اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے بات کرنے میں کافی محتاط رہتی تھی۔ ہاں تقریباً۔ اس کے مختصر ترین جوابوں سے امجد کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی، تھوڑی سی بدلی۔ یہ احمد اور اکمل ہی بیٹھے تھے نا تمہارے پاس؟ نگین نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ امجد کے ایک جملے کے وہ اب کم از کم 10 معنی ضرور بتا سکتی تھی، اور ان میں سے ایک بھی خوشگن نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کیوں تم پہچانتے نہیں ہو ان دونوں کو؟ اس بار نہ صرف وہ اس کی طرف مڑی بلکہ براہ راست امجد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے الٹا سوال بھی کر بیٹھی۔ میرا مطلب یہ نہیں۔ وہ کچھ جھیپا۔ دونوں کافی بڑے ہو گئے، ہفتے میں 4 بار تو تمہارا ان دونوں سے سامنا ہوتا ہے، اسی لیے راتوں رات تو کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے۔ جتنے بھی بڑے ہوئے ہیں تمہارے سامنے ہی ہیں۔ نگین کے طنز کو بھانپ کر وہ حسب عادت فوراً ہی برا مان گیا، اور اپنی ناراضگی کو چھپانے کا اسے ذرا بھی شوق نہیں تھا۔ اتنے بڑے بڑے لڑکوں کا اس طرح گھر میں بیٹھے رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ تمہیں کیا معلوم کس ذہنیت اور عادتوں کے ہیں دونوں؟ امجد کے الفاظ سے زیادہ اس کے لہجے میں کڑواہٹ گھلی ہوئی تھی، اور اس کڑواہٹ کو کاسنی سوٹ میں ملبوس اس بے حد شفاف دل کی مالک لڑکی نے محض اس پاداش میں جھیلا کہ آپ جناب امجد علی 3 ماہ اور 12 دن بیشتر اسے منگنی کروا کر یہ سب کہنے کے حقدار ہو چکے تھے۔ نگین اسے جواب دینے کے بجائے کنستر میں سے آٹا نکالنے لگی۔ امجد کی تسلی کسی طرح بھی نہیں ہوتی تھی، اور اسی قدر ہلکی باتوں کی صفائی پیش کرتے ہوئے اسے اپنے آپ سے شرم آتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا پھوپھی جان کیوں نہیں منع کرتی؟ انہیں تو ایسی باتوں کا خود خیال رکھنا چاہیے نا کہ… پلیز امجد، اسے بولنا ہی پڑا۔ مت کرو ایسی باتیں، وہ دونوں شروع سے مجھ سے پڑھ رہے ہیں، ذرا سے تھے جب سے اس گھر میں آ رہے ہیں۔ ان کے گھرانے سے برسوں پرانا ساتھ ہے امی ابا کا، ایک دیوار ہی تو ہے بیچ میں۔ تم سمجھی نہیں میری بات۔ امجد نے بات پر شاید خوشنما گلاب چڑھانے کی کوشش کرنی چاہی۔ پہلے میری بات سن لو۔ نگین نے اپنی بات جاری رکھی۔ ان لوگوں کے امتحان میں 2 ماہ رہ گئے ہیں، اس کے بعد انہیں ویسے ہی نہیں پڑھاؤں گی، کیونکہ فرسٹ ایئر کو پڑھانا میرے بس سے باہر ہے۔ کس کے امتحان ہو رہے ہیں؟ امی مغرب کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے صحن میں سے گزری تو ادھوری بات سن کر ہی سوال کر بیٹھی۔ بس ایسے ہی پڑھائی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نگین سے کہہ رہا تھا کہ خواہ مخواہ بچوں کے ساتھ دماغ کھپاتی ہو۔ اس کی یہ منافقانہ خیر خواہی نگین کا دل مزید جلا گئی۔ آٹا گوندھ چکا تھا، اسے بھی نماز پڑھنی تھی۔ دروازے میں کھڑے امجد کے نزدیک سے گزر کر اس نے باہر جانا چاہا تو وہ دانستہ اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا، ہم لوگوں کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کو مس انڈرسٹینڈ کرتے رہیں گے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اپنی عادت کے برخلاف وہ سمجھداری کا مظاہرہ کر بیٹھا۔ ہٹ جاؤ پلیز، مجھے نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ ذرا بھی متاثر ہوئے بغیر اتنا کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ صلح بہمی کی اس کوشش کو یوں رائے گا جاتا دیکھ کر امجد ذرا دیر کے لیے تو خاصا جھنجھلایا۔ صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوری سچائی سے خود سے اعتراف کیا کہ اگر وہ نگین کو شروع سے اتنا زیادہ پسند نہ کرتا ہوتا تو طبیعتوں کے اس فرق کی بنا پر اس منگنی کو توڑنے میں لمحہ بھر کی بھی دیر نہ کرتا۔
नगीन इसकी कज़न थी, सगी फूफो की इकलौती बेटी, और ये मंगनी अमजद की अच्छी खासी जिद के नतीजे में अंजाम पाई थी। उसकी अम्मी को नंद की बेटी को अपने घर में लाने से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर अमजद की जिद्दी तबीयत के आगे उनके सारे दलाइल बेअसर गए। वो यूं ही उलझा उलझा सा बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। फूफा थोड़ी देर पहले बाहर गए थे और अब ईशा की नमाज से पहले उनके आने का इम्कान नहीं था। अमजद ने गर्दन घुमाकर कमरे की तरफ देखा। फूफी और नगीन शायद दोनों ही अभी नमाज से फारिग नहीं हुई थी, इसलिए उसे उठना पड़ा। मूड खराब हो चुका था, इसलिए ज़रा सा उठना भी जहमत महसूस हुआ। दरवाज़ा खोला तो सामने सजीला खड़ी थी। आहा, आप हैं। अमजद की सारी बददिली रुखसत हुई। कैसे हैं आप? वो अपनी पजीराई पर इठलाई और फिर लहजे में हल्की सी तशवीश लाते हुए बोली, मुझे तो कुछ कमज़ोर लग रहे हैं आजकल। अरे नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। अमजद हंसते हुए उसकी तौसीक करने लगा। खुद को थोड़ा सा अहम महसूस करते हुए दिल से कुछ देर पहले की नागवारी मिटने लगी। जब तक नगीन वहां आई वो दोनों खासा तबादला ख्याल कर चुके थे और ये बातें यकीनन बहुत दिलचस्प होंगी। तभी उनका छोटा सा सहन इन दोनों के कहकहों से गूंज रहा था और करीब पलंग पर बैठी अम्मी कुछ गुमसुम से अंदाज में इन दोनों की शक्ल देख रही थी। क्या कर रही थी इतनी देर से? सजीला ने उसे आते देखकर अपनी हंसी को ब्रेक लगाया। मैं तुम्हारे इंतजार में कब से बैठी हूँ। कोई बात नहीं, अमजद तो बैठे थे तुम्हारे पास, नगीन ने बिल्कुल आम से लहजे में कहा, मगर सजीला फौरन सफाई पेश करने लगी। मुझे कोई अमजद भाई से थोड़ी काम था, मैं तो तुम्हारे पास आई थी। ब्राउन रील होगी तुम्हारे पास? सच बहुत ज़रूरत है। अम्मी का सूट सी रही थी, बीच में ख़त्म हो गई। घर में कोई लाने वाला भी नहीं है और अम्मी को सुबह खाला के घर पहन कर जाना है। उसकी बताई हुई तफसील उसके सरापे से ज़रा मुमासलत नहीं रख पा रही थी। नगीन ने एक गहरी निगाह सजीला पर डाली। नए सूट में मलबूस वो खासी तैयार तैयार सी नजर आ रही थी। आंखों पर लाइनर और होंठों पर लिप पेंसिल का इस्तेमाल साफ जाहिर था और कानों में टॉप सूट से मैच करके पहने गए थे। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो सिलाई मशीन की मसरूफियत से उठकर यूं ही चली आई है। नगीन खामोशी से उठी और अंदर से रीलों का डब्बा लाकर सजीला के हाथ में थमाया। झूठे आदमी की ढिठाई पहाड़ के बराबर होती है और उसे ये पहाड़ सर करने की जरा ख्वाहिश नहीं थी। सजीला ने डब्बा उसके हाथ से ले लिया, मगर मजाल है जो उसकी जुबान एक लम्हे के लिए भी रुकी हो। ताज़ा तरीन देखी हुई फिल्म पर उसका बेलाग तबसरा अमजद इस कदर इन्हमाक से सुन रहा था कि नगीन को हैरत होने लगी। इतना तो खैर उसे अच्छी तरह मालूम था कि अमजद को इंडियन फिल्मों से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। उसका सारा इंटरेस्ट इंग्लिश फिल्मों तक ही महदूद है। अम्मी अंदर जा चुकी थी, नगीन को तो जाहिर है कि वहाँ बैठना ही था। सजीला को अदाकारों की फिल्मी और गैर फिल्मी मसरूफियत से मुकम्मल आगाही थी। सुबह से बात निकलती जा रही थी। चंद लम्हों में ही नगीन को अपनी वहाँ मौजूदगी बिल्कुल फजूल और बेमायनी लगी। मैं चाय बना लाती हूँ, वो उठ खड़ी हुई। इन दोनों ने जरा की जरा नजर उठाकर उसे देखा और निगाहों ही निगाहों में गोया मंजूरी देते हुए अपनी बातों में मुनहमिक रहे। वो किचन में चली आई। चाय का पानी चूल्हे पर रखते हुए नगीन ने सोचा कि सजीला की अम्मी का वो जोड़ा जो इमरजेंसी में सिल रहा था आखिर किस वक्त में पूरा होगा। सजीला के हंसने की आवाज़ सारे घर में गूंज रही थी। हंसते हुए उसके गालों में डिंपल पड़ते थे जिससे उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता था। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी, इसलिए बात बात में हंसने का बहाना ढूंढ लेती थी। चाय बन चुकी थी, वो कपों में निकाल कर बाहर चली आई। तुमने ख्वामखा तकलीफ की। चाय का कप थामते हुए सजीला ने इतना कहना जरूरी समझा। वो जवाबन मुस्कुरा दी और बस। बहुत दिलचस्प बातें करती है तुम्हारी दोस्त, अमजद ने गो मुखातिब उसे किया था, मगर उसकी दाद देती निगाहें सजीला पर ही जमी हुई थीं, जो अब एक अदा से चाय का कप हाथ में थामे हुए थी। ये तो बहुत अच्छा है कि तुम्हें उनकी कंपनी हमा वक्त दस्तयाब है। नगीन का दिल चाहा कि अमजद की इस गलत फहमी को फौरन ही दूर कर दे। सजीला कभी भी उसकी दोस्त नहीं रही थी। एक मोहल्ले में रहने और हम उम्री के बावजूद भी उन दोनों के ताल्लुकात कभी भी रस्मी अलैक सलैक से आगे नहीं बढ़े थे। ये तो अभी कुछ माह से ही उनके घर आना जाना बढ़ा था और ये आमद भी तवातर से ऐन अमजद की मौजूदगी में ही हो रही थी। मगर ये सब कुछ वो सिर्फ सोच कर रह गई। उसे हमेशा से लोगों को हर्ट करने से खौफ आता था। उसकी कही बात वो दोनों को बुरी लगेगी और शायद तकलीफ वो भी अपनी ज़ात से किसी को भी मामूली तकलीफ पहुंचाना उसके मिजाज के खिलाफ था। अमजद के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सजीला के चेहरे पे हल्की सी सुर्खी आ गई। उसके पास हम गरीबों के लिए वक्त कहाँ, उसको अपने शागिर्दों और उनके बाद अपनी किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। जो हमें भी लिफ्ट दे वो तो हम ही ढीठ बनकर चले आते हैं रोज रोज। वो बज़ाहिर बहुत मासूमियत से अमजद को कुछ बावर करवाने की कोशिश कर रही थी और यह कोशिश कामयाब भी रही। अमजद का मूड थोड़ा सा बदला। बहुत गलत रूटीन है तुम्हारी नगीन, जरा जिंदगी को एंजॉय करना सीखो। उसके लहजे में हल्की सी सरजनिश थी जिसे नगीन ने बहुत महसूस किया। ठीक है, वो खुद दूसरों पर एतराज़ करने और उन्हें डिग्रेड करने की कभी ज़रूरत नहीं समझती थी, लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं था कि वो अपनी ज़ात पर इतनी तनकीद या बहस की इजाज़त दे दे। सेल्फ रिस्पेक्ट की उसके नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत थी, सो जवाब देना ही पड़ा, मगर अंदाज अभी भी नरम ही था। हर एक के अपने अपने शौक़ हैं, हो सकता है
जिस बात में तुम्हारे लिए इंजॉयमेंट हो वो मेरे लिए बिल्कुल बोरिंग हो। इस तरह मेरी दिलचस्पियां तुम्हारे लिए कशिश ना रखें। जब इंसान हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं तो जाहिर है कि ओफो, फिर वही लेक्चर। सजीला के चेहरे पे ऐसे तासुरात उभरे जैसे उस पर मनोवजन लाद दिया गया हो। मेरा ख्याल है कि मुझे तो अब चल ही देना चाहिए। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो नगीन को अपना मजाक उड़ाती महसूस हुई, और वो भला क्यों इस बेसरोपा बातें करने वाली लड़की से अपना मजाक उड़वाए। इसी ख्याल के तहत उसने रस्मन भी सजीला को रोक इसलिए उसने इसी ख्याल के तहत उसने रस्मन भी सजीला को रोकने के लिए नहीं कहा। हाँ, वैसे भी तुम्हारी अम्मी का सूट अधूरा पड़ा होगा। उसके बहुत रसानियत से कहे गए जुमले ने भी सजीला को नाराज कर दिया और वो उठ खड़ी हुई। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके तेवर बिगड़े हुए थे। ये क्या बचपना है भाई, रुको तो। अरे सजीला। इस मौके पर अमजद को अपनी दखल अंदाजी बहुत जरूरी महसूस हुई, क्योंकि सजीला दरवाजे का रुख कर चुकी थी। आप क्यों रोक रहे हैं? आपका घर थोड़ी है ये। सजीला ने एक अंदाज से उसे देखा। अपनी हंसी के साथ साथ उसे अपनी आंखों के इस्तेमाल पर भी अबूर था। किस वक्त किस अंदाज से देखना कारगर साबित होगा, इस बात का तजर्बा उसने नौउम्री से ही हासिल करना शुरू कर दिया था। नगीन भाई तुम रुको ना। सजीला को। अमजद खुद को संभालते हुए नगीन की तरफ मुड़ा, मगर वो जगह खाली थी जहां वो बैठी थी। चाय के कप समेत वो किचन में जा चुकी थी। सजीला के नाजो अंदाज देखने की ना उसे फुर्सत थी और ना जरूरत। हाँ, अमजद को उसका ये रूखा अंदाज हैरानगी की हद तक बुरा लगा था। नगीन से उसे ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। सजीला पाँव पटकती हुई जा चुकी थी और अमजद अब ऐसे शर्मसार था जैसे खुद उससे कोई गलती सरजद हो गई हो। अपनी इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अगले 1 घंटे तक नगीन की क्लास ली और उसे अपने रवैये की बदसूरती का एहसास दिलाने में सारा जोर बयान सर्व करता रहा। बेचारी मासूम सी लड़की है, तुम्हारी मोहब्बत में आती है और तुम होके और वो और भी बहुत कुछ कहता रहा। नगीन अपना काम निपटाते हुए सुनती रही। एक बार भी उसने अमजद को बीच में नहीं टोका। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि सजीला ना तो मासूम है और ना ही वो उससे कोई खसूसी मोहब्बत रखती है। लेकिन अमजद इसकी जिस तरह वकालत कर रहा था, वो अंदाज नगीन के दिल में कुछ सवाल जरूर उठा रहा था। और उस रात जब फुर्सत के लम्हात मुयस्सर आए तो नीम अंधेरे सहन में बिछे पलंग पर लेटकर बेहद ठंडे तकिए में मुंह देकर उसने बहुत कुछ सोचा। सबसे ज्यादा हैरत उसे अमजद की शख्सियत में छुपे तजाद पर थी। कहाँ तो वो महज अकमल और अहमद की बेजरर आमद पर तंज के तीर चला चला कर उसे बेजार करने की कोई कसर ना उठा रखता था, और कहाँ खुद उसका अपना ये हाल था कि सजीला से घंटों गप्पे लड़ाकर भी शायद उसका दिल नहीं भरता था। दोनों के ताल्लुकात दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे। उसकी मौजूदगी, उसके लच्छेदार बातें, उसकी सस्ती अदाएं, कुछ भी अमजद के नज़दीक काबिल एतराज़ नहीं था। अपने लिए उसके असूल कायदे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, और ये आदत इन दोनों की आइंदा ज़िंदगी को कितनी बेसुकून रखेगी, इसका अंदाज़ा अभी अभी बहुत आराम से लगाया जा सकता था। अमजद की तबीयत का कदरे हल्कापन तो खैर मंगनी से पहले भी आया था, पर अब तो वह इस पर रोज़ बरोज़ मजीद आया होता जा रहा था। नगीन का दिल भारी होने लगा। उसकी कहीं कमिटमेंट नहीं थी। अमजद का रिश्ता आया तो अम्मी की खुशी देखने लायक थी। अपने भावे से उन्हें कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, मगर अब इस रिश्ते के सदके वो उनके पिछले सारे कसूर माफ़ कर चुकी थी। नगीन के पास उससे इनकार का कोई जवाब ही नहीं था, और होता भी क्यों, और होता भी तो वो शायद अम्मी की खुशी को रोकने की कभी भी हिम्मत नहीं कर पाती। अब इस नामाकूल शख्स के साथ वो कहाँ तक एडजस्ट कर पाएगी, इस सवाल का जवाब रोज़ बरोज़ पेचीदा होता जा रहा था। वो मालूम नहीं कितनी देर अपनी सोचों में उलझी रहती अगर अम्मी उसे आकर ना उठाती। वो उसे कमरे में चलकर सोने का कह रही थी ताकि बरामदे की ग्रिल बंद की जा सके। ये रीलों का डब्बा यहाँ क्यों पड़ा है? अलमारी में ले जाके रखो। अम्मी के कहने पे उसने नजर दौड़ाई तो कुर्सियों के आगे पड़ी छोटी गोल टेबल पर रीलों का डब्बा जूं का तूं धरा था। सजीला ने उसे खोलने की भी जहमत नहीं की थी, और यकीनन उसे इसकी जरूरत थी भी नहीं। एक भरपूर नींद लेने के बाद जब उसकी आंख खुली तो ये एहसास बहुत खुशकुन था कि आज वो अपने घर में है, और इस बार ये आमद पूरे 4.5 माह बाद हुई थी। वॉल क्लॉक पर नजर डाली तो मालूम हुआ कि खैर से सुबह कब की गुजर चुकी है। बाहर से अम्मी और भाभी के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, और बीच में कहीं कहीं काम करने वाली मासी रहमत की भी कहानी स्टार्ट थी। उसका शुरू से यही मामूल था। सुबह को उसकी आमद के साथ ही एक नई कहानी की शुरुआत हो जाती थी, जो दिन ढले उसकी वापसी पर ही ख़त्म होती थी। किरदार जरूर वक्त के साथ बदल गए थे। पहले ससुराल के मुजालिम और मियाँ का निकम्मापन सर फेहरिस्त था। अब कुछ सालों से दामाद और बहुएं इन थे, वो सब इसके आदी थे, और आज कई माह बाद घर के इसी मानूस माहौल को महसूस करते हुए अदी का दिल खुशी के एहसास से भरता चला गया। हाँ, इसने गहरी सांस ली और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। नहाकर निकला तो किसी ने कमरे का दरवाज़ा हल्के से बजाया।
आ जाइए भाभी, वो बहुत इत्मीनान भरी आवाज में बोला और बाहर भाभी ही थी जिन्होंने बाहर से अंदर आने में महज पल ही लगाया था। उठ गए तुम? मैं तो बस देखने ही आई थी। क्यों देखने? क्यों? खाली खुली वो मुस्कुराया। जबरदस्त सा नाश्ता कराएं। भाभी को उससे बहुत मोहब्बत थी और हमारे मोहब्बत के वो सुबह से शायद छठी बार उसे चेक करने आई थी कि वो उठ गया है या नहीं। जबरदस्त नाश्ते का तो अब वक्त नहीं, हल्का सा नाश्ता कर लो, वरना जो दोपहर के लिए इतना कुछ पका रही हूँ वो कौन खाएगा। जवाब में वो इतनी जोर से हंसा कि भाभी हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी। ये कौन की आपने अच्छी कही, अपनी हंसी को जब्त करता हुआ वो बोला। तो मैं कौन सा उनकी तौहीन कर रहा हूँ खुदा न खास्ता, मैं तो उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा अपने बाल ब्रश कर रहा था। अहमद और अकमल चले गए स्कूल। उसे उन दोनों का ख्याल आया तो बात बदल गई। कब के चले गए? और अब तो 2 घंटे बाद खैर से आ भी जाएंगे। बस अब चलो तुम, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। भाभी ने दरवाजे का रुख किया तो किसी ख्याल के तहत वो उन्हें फिर से पुकार उठा। अरे भाभी, बात तो सुने। वो गर्दन मोड़कर उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। पास पड़ोस में तो सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत ही है, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी कोई खास खैर खबर? खास खबर? उन्होंने जहन पर हल्का सा जोर दिया। हाँ, परसों तो सजीला की अम्मी का मोहल्ले के कुछ लड़कों से जबरदस्त झगड़ा हुआ है। उन्हें शिकायत थी कि वो सब सारा वक्त उनके घर के आगे खड़े रहते हैं। अदी की इंक्वायरी पर जो ताज़ा तरीन वाकया फौरी तौर पर उनके जहन में आया था वही उन्होंने उसके गोशगुजार कर दिया। छोड़े भी, उनकी तो बेटी खुद। अदी ने नागवारी से सर झटकते हुए बात अधूरी छोड़ी। भाभी से लाख बेतकल्लुफी के बावजूद हर मौजू पर बात नहीं की जा सकती थी। भाभी भी उसकी मालूमात में इजाफा करके जा चुकी थी और जो कुछ उसने पूछना चाहा था उसका खातिर ख्वाह जवाब ना मिल सका था। जमाने भर की भाभियां बहनें कैसे उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं। यहाँ तो लगता है अपने इर्द गिर्द रहने वालों की कमअक्ली पर अफसोस करता हुआ वो भी बाहर निकल आया। अम्मी और मासी रहमत दोनों उसे देखकर खुश हो गईं। एक सलाम के जवाब में इतनी दुआएं मिलीं कि वो बेइख्तियार सोचने लगा कि इतनी सारी मोहब्बतों को छोड़कर वो खामखा ही पिछले 3 सालों से पेशावर में पड़ा हुआ है। बस बेगम जी, अब अदी मियाँ की शादी भी कर डालिए। मासी रहमत ने अपनी कहानी भूलकर फिर वही मशवरा दिया जो उसकी हर मर्तबा आमद पर दिया करती थी। अदी के मुंह में पराठे का बड़ा सा नवाला था, इसलिए सिर्फ सर हिलाकर ही मासी के मशवरे की दाद दे सका। हाँ, बस अब कोई अच्छी सी लड़की देख ही लो दुल्हन। अम्मी ने फौरन ही जिम्मेदारी भाभी के कंधों पर रख दी। हमारी दोनों बेटियों को तो खैर से अपनी अपनी ससुराल से ही फुर्सत नहीं जो इन्हें भाई की फिक्र हो। उनका अगला जुमला तंजिया था। अदी को फिक्र हुई कि अब यकीनन वो उसके मसले को भूलकर उसकी दोनों बड़ी बहनों और उसके ससुराल के खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोलने वाली हैं, इसलिए जरूरी था कि मौजू को बदलने ना दिया जाए। वैसे भी गुजारा तो भाभी के साथ ही होना है, इसलिए अच्छा है कि इन्हीं की पसंद की आए। क्यों भाभी? भाभी उसके लिए चाय ला रही थी। उस खुशामद पर हंसने लगी। उन्हें कतई ख्याल नहीं था कि इस बार वो संजीदा है। ज्यादा बोलना उसकी आदत थी और जब से उसकी पोस्टिंग पेशावर में हुई थी कई माह बाद घर आने पर वो बेमकसद बातें कुछ ज्यादा ही करता था। नहीं दुल्हन, अब ये काम कर ही डालो। अम्मी संजीदा हो रही थी। अदी ने शुक्र किया कि इसका काम आसान हो रहा था। भाभी के नजदीक चंद अहम तरीन कामों में से एक अपनी सास को खुश रखना था और उसी वजह से उनके घर का माहौल पिछले 15-16 वर्षों में मिसाली रहा था। इस वक्त भी उन्होंने अम्मी को फौरन ही मुतमईन करना चाहा। मैं आज ही 2-4 मिलने वालों से जिक्र कर दूंगी। अगर कोई अच्छी लड़की मिल गई तो इन्हीं छुट्टियों में अदी की बात कम अज कम तय कर देंगे। वो तुम्हारे जो एक रिश्ते के मामू रावलपिंडी में रहते हैं, उनकी बेटी पिछले साल आई थी यहाँ। अम्मी को अचानक याद आया। अच्छी लड़की थी, अभी कहीं बात वगैरह तो तय नहीं हुई उसकी? सुनने में तो नहीं आई अम्मी, दूसरा शहर है, अगर तय कर भी देंगे तो भी फौरन पता नहीं चल सकता। भाभी ने खदशा जाहिर किया। बात कहाँ से कहाँ निकलती जा रही थी, उसे बेबसी से सुनना पड़ रहा था। दिल तो चाह रहा था कि साफ साफ कह दे कि इतनी दूर घोड़े दौड़ाने से बेहतर है कि अपनी दीवार के पार ही झांकने की जहमत कर लें। अम्मी को रावलपिंडी वाली लड़की की याद कुछ इस शिद्दत से सता रही थी कि उन्होंने भाभी को कराची में ही मुकीम नामालूम किस अजीज से फोन पर कंफर्म करने का मशवरा दे डाला और वो भी अमल पैरा होने के लिए उठ खड़ी हुई। इतनी दूर कहाँ जा रही हैं आप? अम्मी का जोशो खरोश उसे अब थोड़ी सी तफ्शीश में मुब्तला कर रहा था। यही कहीं देख लेना। वो अब भी इशारा नहीं समझी, उल्टा बिगड़ने लगी। दूर करीब क्या, जहाँ नसीब होगा वहाँ होकर रहेगी। और फिर तुम खुद कौन सा यहाँ रहते हो? जहाँ खुद रहोगे वहाँ वो भी रह लेगी। तो क्या मैं जिंदगी भर वहीं पेशावर में ही बैठा रहूंगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ ट्रांसफर होकर। अच्छा, क्या वाकई? अम्मी के लिए यह खबर नहीं थी। कल रात गए तो वो आया था, अभी तक तफसील से बात ही नहीं हो पाई थी। उसे समझ आना पड़ा कि अभी उसके ट्रांसफर ऑर्डर नहीं आए हैं। अलबत्ता उम्मीद है कि जल्द ही इस सिलसिले में कुछ ना कुछ हो जाएगा। भाभी फोन करके लौटी तो साथ में खुशखबरी थी कि रावलपिंडी वाली लड़की के साथ बात बन सकती है, क्योंकि खुशकिस्मती से वो अभी तक कहीं एंगेज नहीं है। अम्मी की खुशी दोहरी हो गई। एक तो अदी के वापस आने की उम्मीद और दूसरे उसकी शादी के मामले में पेशरफ्त। वो और भाभी आपस में कुछ
सेट करने लगी। अति बदमजा सा हो गया। रावलपिंडी वाली लड़की तो वो हरगिज देखने नहीं जाएगा। दिल ही दिल में ये तय करके वो उठकर खड़ा हुआ ही था कि लाउंज का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम। ये नगीन थी, जो उसे अचानक सामने देखकर थोड़ा सा हैरान हुई, फिर हल्के से मुस्कुराकर भाभी और अम्मी की तरफ मुतवज्जा हो गई। ये इतनी अच्छी लड़की आखिर इन लोगों को क्यों नजर नहीं आ रही? अदी ने वापस बैठते हुए सोचा। लगता है भाभी से खुलकर बात करनी पड़ेगी। नगीन जल्दी में थी, भाभी के इसरार पर भी वो बैठी नहीं। किसी चीज़ की तरकीब पूछनी थी उसे भाभी से, सो वो खुशी खुशी बताने लगी। खाने पकाने के मामले में अपनी बालादस्ती उन्हें बड़ी मुसरत बख्शती थी। महज वहाँ बैठे रहने की खातिर अदी को भी इन स्पेशल कबाबों की तरकीब सुननी पड़ गई, जो आज नगीन को बनाने थे। वो वापस सोने लगी तो अदी ने बेख्तियार ही उसे कुछ देर रोकना चाहा। कैसी हो नगीन? आंटी और अंकल कैसे हैं? अच्छी हूँ, वो मुस्कुराई। आप कब आए? उसने भी यकीनन मुरब्बतन ही पूछा था, वरना उसे अदी के आने जाने की क्या परवाह। ये बात जानते हुए भी उसका पूछना उसे अच्छा लगा। रात ही आया है। इससे पहले ही भाभी बोल पड़ी। और नगीन, पता है अब अदी के लिए भी लड़की देख रहे हैं हम लोग। कोई अच्छी सी लड़की पता चले तो ज़रूर बताना। भाभी की ये शौकी अदी को ज़रा भी नहीं भाई, मगर कुछ ना कह सका। नगीन ने खुशी का इजहार करते हुए मदद का वादा कर लिया। अरे तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? इसने अपनी पोजीशन साफ की। क्या गोया मैं झूठ बोल रही हूँ? सुन रही हैं अम्मी? भाभी झूठ मूठ बुरा मानकर अम्मी को उस किस्से में इन्वॉल्व करने लगी। नगीन को इन लोगों के घर का ये हंसता खेलता माहौल शुरू से बहुत अच्छा लगता था। वो उनके घर में बचपन से आ रही थी। सिकंदर भाई की शादी के वक्त तो वो बहुत छोटी थी और अदी उससे कुछ साल बड़ा। इन दिनों तो वो शबाना भाभी के चारों तरफ हमावक्त मंडलाती रहती थी। एक तो उनकी दुल्हन होने की अट्रैक्शन और दूसरा उनका हुस्न इखलाक। वो बुरी तरह उनकी गर्विदा हो गई थी और आज तक थी। हाँ, अब इस उम्र तक आते आते वो जहाँ जिंदगी के और रवैयों में संजीदा हुई थी, वहाँ इस रिश्ते में भी बचगानापन खत्म हो गया था। वक्त बेवक्त उनके घर चले आना तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी और अदी ने तो साफ महसूस किया था कि उसकी और सिकंदर भाई की मौजूदगी के औकात में तो वो उनके घर का रुख ही नहीं करती थी। मैं चलती हूँ भाभी। नगीन ने महसूस किया कि इन देवर भाभी की नोक झोंक में उसका यहाँ खड़ा रहना बिल्कुल ही बेमायनी सा लग रहा है। क्या जल्दी है तुम्हें? नगीन के रिजर्व रहने के बावजूद वो हल्की फुल्की सी बेतकल्लुफी बरकरार रखे हुए था। आज तो खैर ये बहुत जल्दी में है। इसके ससुराल वालों की दावत है और उसे इन पर अपनी धाक जमानी है। भाभी टेबल पर से चाय के बर्तन समेटने लगी। नगीन उनकी बात पर हंस पड़ी। कोई धाक वाक नहीं बैठ रही। मामू जान और मुमानी जान उमरा करके आए हैं। इसी खुशी में अम्मी ने खाने पर। अदी के लिए यह खबर इस कदर अचानक थी कि वो बस इसकी और भाभी की शक्ल देख के रह गया। नगीन की ससुराल, मामू जान, दावत। सारे अल्फाज गड़मड़ से हो रहे थे। खबर बेहद तकलीफ दे थी, पर यकीन ना करने की कोई वजह भी नहीं थी। नगीन के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट उसे बेहद बुरी लगी। उसने रस्मन भी उसे मुबारकबाद देने की जहमत नहीं की। नगीन ने भी शायद उसकी अचानक संजीदगी को महसूस कर लिया था, जिसकी वजह फिलहाल उसकी समझ में नहीं आ रही थी। अदी ने करीब रखा अखबार अपने आगे फैला लिया और अगले चंद लम्हों में वही अखबार उसके लिए आड़ बना रहा। नगीन चली गई तो उसे मासी रहमत की आवाज़ सुनाई दी, जो नगीन की तारीफ में मगन थी। बहुत नेक बच्ची है जी, किसी किस्मत वाले के घर ही जाएगी। कौन था ये किस्मत वाला? उसकी निगाहों में अमजद की शक्ल घूमी। नगीन के एक ही मामू थे और उनका बड़ा बेटा अमजद था। ये सब तो वो अच्छी तरह जानते थे। अच्छा भला लड़का था अमजद, मगर आज वो उसे अपना मुंह चढ़ाता हुआ महसूस हो रहा था। पहल करके वो बाजी जीत गया था और वो खुद बैठा प्लानिंग ही करता रह गया। इस बार घर वालों से हतमी बात करने का मंसूबा धरा का धरा ही रह गया। वो बेहद गुमसुम सा बैठा था कि भाभी पूछ बैठी, तुम्हारे लिए और चाय लाऊं अदी? जी नहीं। उसने एक झटके से अखबार मेज पर रखा और तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। भाभी ने बगौर उसे जाते हुए देखा। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो उन्हें चौंका गया था। नीता और राफिया से बातों में मशगूल सारा ने ड्राइंग रूम में अमजद के चौथे चक्कर को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया था। उसके इन दो दोस्तों को उसके घर आए बामुश्किल 1.5 घंटा हुआ था और इस 1.5 घंटे में अमजद भाई की दखल दर माकूलात का सिलसिला जारी रहा। किसी न किसी बहाने उनके अंदर के चक्कर जारी थे। पहले एक आध बार तो शायद राफिया और निदा ने नोटिस ना लिया हो, मगर इस बार तो सारा ने इन दोनों को आंखों में इशारा करते हुए साफ देखा था और अब शर्म से गड़ी जा रही थी। माना कि वो उसकी बेहतरीन दोस्तों में से थीं, मगर उसकी गैर मौजूदगी में वो बाकी ग्रुप को अमजद भाई की हरकतें मजे ले लेकर सुनाएंगी, ये वो अच्छी तरह जानती थी। स्कूल कॉलेज की दोस्तियाँ अमूमन इतनी गहराई लिए हुए नहीं होती। क्या बात है अमजद भाई, किसे ढूंढ रहे हैं? सारा ने बहुत जब्त से पूछा। अमजद की साइड बोर्ड की दराजों में उलट पलट करने की मसरूफियत तवील हो गई थी। हाँ, वो कुछ कागजात हैं। उसने वहाँ रुकने का अच्छा बहाना तलाशा। हम लोग चलते हैं, फिर किसी वक्त आ जाएंगे।
वही हुआ जिसका सारा को धड़का था। नीता और राफिया उठ खड़ी हुई और फिर उसके बेहद इसरार पर भी नहीं रुकी। गेट पर इन दोनों को खुदाहाफिज कहकर जब वो वापस अंदर आई तो उसकी कुव्वत बर्दाश्त इन दोनों के साथ ही रुखसत हो चुकी थी। उसकी जो सुबह दोस्तों के सामने होनी थी हो गई, मगर अब वो अमजद को माफ करने के मूड में हरगिज नहीं थी। तो मुकदमा सीधा हाईकमान के सुपुर्द हुआ। जिस वक्त अमजद की पेशी हुई तब तक वो अब्बा को सारा किस्सा रो रो कर सुनाकर उनकी सारी हमदर्दी समेट चुकी थी। आप ख्वामख्वाह बिगड़ रहे हैं। अगर एक आध बार अंदर चला गया और वो भी ज़रूरी काम से, एक आध बार नहीं पूरे 4 मरतबा आप अंदर आए हैं। अमजद की सफाई की कोशिश को उसने रद्द करते हुए रिकॉर्ड दुरुस्त किया। अच्छा चलो मान लिया, मगर कौन सा गजब हो गया जो तुमने इस तरह रोना मचाया है। अम्मी हमेशा से अमजद की तरफदारी करती चली आ रही थी। वो उनकी पहली औलाद था जो उनके ख्याल में कभी गलती पर नहीं हो सकता था। अलबत्ता अपने बकिया दोनों बच्चों यानी हैदर और सारा से वो हर अच्छी बुरी तवक्का रखती थीं। देखा अब्बा, सारा की आंखों में फिर से आंसू आने शुरू हो गए। अम्मी कितनी नाजायज़ हमायत करती हैं इनकी, मेरा किसी को ख्याल नहीं। कितना हंसेंगी सारी दोस्तें मुझ पर। एक तो आप कमरा भी घर के बीचों बीच दिया हुआ है, वरना वहीं बैठ जाया करती। अम्मी ने बकिया बात पर गौर किए बगैर सारा की सहेलियों को महज इस मुमकिन जुर्म पर सुलवातें सुनाना शुरू कर दी थीं जो अमजद का मजाक उड़ाकर उनसे सरदर्द होना था। देखो मियाँ, अब्बा हाथ के इशारे से अम्मी को खामोश करते हुए अमजद से मुखातिब हुए। गलती तो तुम्हारी है, सारा तुम्हारी बहन है और इसकी दोस्त है काबिल एहतराम। सारे अच्छे घरानों की बच्चियां हैं और बेचारी कभी कभार ही आती हैं। आप सब यही कहेंगे कि लो सारा के भाई को देखो। अब सब यही कहेंगे कि लो सारा के भाई को देखो। अच्छी भली मंगेतर के होते हुए लड़कियों को देखने से बाज नहीं आता। अब्बा सांस लेने को रुके तो सारा ने मजीद मवाद फराहम किया। ये बात वो पहले भी दोहरा चुकी थी और बेसोचे समझे बाप के सामने बोलने पर डांट भी खा चुकी थी अम्मी से। कोई शौक नहीं है मुझे लड़कियों को देखने का, समझी। अब्बा के सामने इस इल्ज़ाम पर अमजद को वाकई शर्मिंदगी हुई, इसलिए गुस्से से बोला, तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से डर लगता है। बेसोचे समझे हर किसी से दोस्ती गांठती फिरती हो। ज़माना कितना ख़राब है। उसके दिल में छुपी बात लबों पर आई तो बात का रुख खुद ही मुड़ता चला गया। सारा का कहना था कि अमजद की शक्की तबीयत सारे घर का सुकून बर्बाद कर रही है और अमजद का ख्याल था कि आजकल के ख़राब माहौल से वो अपने घराने को बचाए रखने के लिए ये सब एहतियात करता है। अब्बा हमेशा से बच्चों के नज़दीक थे। सारा पर उन्हें बेहद एतमाद था। उसकी तबीयत में अभी भी हल्का सा बचपना झलकता था जो उन्हें बहुत अजीज था। फिर भी उसकी शिकायतों पर अमजद को कुछ ज्यादा नहीं कहते थे कि छोटी बहन के दिल से बड़े भाई का एहतराम जाता ना रहे। इस वक्त भी उसे आइंदा मोहतात रहने की हदायत करके रह गए। वो मुंह बनाता हुआ बाहर निकला तो अम्मी ने दिलजोई की खातिर पीछे जाना जरूरी समझा। बहुत शक की तबीयत है अमजद भाई की अब्बा, हर एक पे शक रहता है इन्हें। अब राफिया और निदा को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। राफिया साबिर अंकल की बेटी है और निदा उसकी कज़न। कौन सी अजनबी लड़कियां हैं, मगर जब भी कोई मेरे पास आता है बहाने बहाने से बातें सुनने की कोशिश करते रहते हैं। अब्बा अमजद के मुतालिक इस नौयत की शिकायतों के सुनने के बाती होते जा रहे थे और अकेले में कई बार उसे समझाने का फरीजा भी अंजाम दे चुके थे। बहुत याद करने पर भी इस उलझन का सिरा उनके हाथ में नहीं आता था। अपने तौर पर तो उन्होंने घर के माहौल को सेहतमंद और खुशगवार रखने की हर सही की थी। फिर भी अमजद इस शक की बीमारी में आखिर कैसे मुब्तला हुआ। उनका क्या बिगड़ा, बेइज्जती तो मेरी हुई ना। सारा को अब अगले 2-4 दिनों के लिए कुढ़ने के लिए खासा मुवाद मिल गया था। अब्बा उसे समझा बुझा कर रुखसत तो कर गए थे, मगर हकीकतन वो खुद परेशान थे और उनकी परेशानी की वजह नगीन थी, उनकी बेहद अजीज भांजी, जिसे बड़ों के किए गए फैसले के तहत अमजद के साथ जिंदगी गुजारनी थी। खिड़कियों के शीशों पर दोपहर की हल्की पड़ती धूप की चमक अभी बाकी थी और अंदर कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। तुमने पहले क्यों नहीं कहा अदी? भाभी की आवाज़ ने उस खामोशी को तोड़ा। अदी से कुछ बुलवाने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। वो पहले ही दिल पर भारी बोझ लिए किसी गमगुजार की तलाश में था। कभी कोई इशारा भी नहीं किया, वरना कोई मुश्किल बात तो नहीं थी। वो उन्हें देखकर तल्खी से मुस्कुराया और बोला, कमाल करती हैं आप भी। मैं क्या पहले से शोर मचाता? यही सोचा था कि जब कभी बात उठेगी तो आपसे कह दूंगा। और फिर आप खुद भी तो सारा दिन उसी के नाम का कलमा पढ़ती हैं। आपको खुद क्यों नहीं ख्याल आया? यकायक सारा बोझ उसने उनके कंधों पर धरा तो वो बेचारी शर्मिंदा हो गई। सचमुच कुछ ना कुछ कसूरवार तो वो भी हैं। उन्होंने दिल ही दिल में इतराफ़ किया। रावलपिंडी तक तो आप लोगों का ध्यान चला गया, मगर करीब की? ऐसा नहीं है आदि। भाभी ने उसकी बात काटी। मैंने माना कि नगीन अच्छी लड़की है, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। पढ़ी लिखी है, नरम मिजाज है, सलीकामंद है, और भी बहुत सी खूबियां हैं। लेकिन ये सब बातें हमें ही तो मालूम है ना, हम जो शुरू से उसके करीब हैं। वो सांस लेने के लिए रुकी। अदी आंखों में उलझन लिए उन्हीं की तरफ देख रहा था।
اب مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر اتنا تو تم مانو گے کہ ظاہری خوبصورتی کا جو معیار ہمارے ہاں ہے اس پر وہ پوری نہیں اترتی۔ ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی ہے اور بس، ایسے میں اس کی طرف کیسے دھیان جا سکتا تھا؟ بس کریں بھابی، ادھی پر ان کے خیالات جان کر جھنجھلاہٹ سوار ہوئی۔ کم از کم آپ سے مجھے ایسی امید نہیں تھی۔ ذرا حسن کے معیار کی تشریح تو فرمائیے جو آپ کے ہاں رائج ہیں۔ آپ کے ہاں پر زور دیتے ہوئے اس کا لہجہ خود بخود تنزیہ ہو چلا تھا۔ اس کے لیے یہ ناقابل فہم تھا کہ نگین کا شمار خوبصورتی میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا تھا تو اسے آخر کیوں وہ سارے زمانے سے بڑھ کر حسین لگتی تھی؟ اس کا جواب بھابی کے پاس نہیں تھا اور شاید کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ شبانہ بھابی شرمندگی میں مزید صفائی پیش کرنے لگیں، مگر یہ اس کے مسئلے کا حل نہیں تھا۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ ادھی نے امید بھری نگاہوں سے بھابی کو دیکھا کہ شاید اس مایوس کن صورتحال میں بھی وہ کوئی روشنی کی کرن ڈھونڈ نکالیں۔ اب ایسا ہے کہ دل برا کرنے کی تو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سے ایک اچھی لڑکیاں ہیں زمانے میں، تم ایک نظر نوشی کو دیکھ تو لو، بہت پیاری لڑکی ہے۔ امی کو تو وہی اپنی بہو بنانے کے قابل لگی ہے۔ انہوں نے دلاسا دیا یا راہ سجائی تھی؟ بہرحال ادھی نے ان کے چہرے پر سے نظریں جمائے جمائے سکون سے ان کی پوری بات سنی اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، چلیے چھٹی ہوئی، بس اب میری شادی کے قصے کو آپ بھول ہی جائیے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ زندگی بھر شادی نہیں کرو گے؟ وہ ہول گئیں۔ اخبار رسالوں میں پڑھے کئی قصے یاد آ کر رہ گئے جن میں ایک فریق دوسرے کی یاد میں جوگ لے لیتا ہے۔ فی الحال میں صرف انتظار کروں گا۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کھڑا ہوا اور بالوں کو برش کرنے لگا۔ کس کا انتظار؟ وقت کا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جب وقت آ جائے گا تو مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے پرفیوم اٹھا کر خود پر سپرے کیا۔ ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ وہ باہر نکل گیا مگر ان کے سلجھانے کے لیے ایک بڑی الجھن چھوڑ گیا تھا۔ اس کی ادھوری باتوں کا مفہوم واضح نہیں تھا۔ اللہ جانے اس نے دل میں کیا ٹھانی تھی، کہیں نگین کی منگنی توڑوانے کے لیے کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ وہ بیچارے تو بہت شریف لوگ ہیں، انہیں نگین کے گھرانے کی بھی فکر ہونے لگی تھی۔ امجد کئی دنوں سے ان کے گھر نہیں آیا تھا اور اس کی وجہ بھی وہ جانتی تھی۔ اس روز جب وہ سب لوگ دعوت میں آئے تھے تب تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ماموں جان، مومانی جان، سارا، حیدر اور امجد سبھی آئے ہوئے تھے اور وقت بے حد خوشگوار انداز میں گزر رہا تھا۔ ماموں جان کی تو خیر بات ہی اور تھی، مگر اس دن تو مومانی جان نے بھی کئی بار اس کے پکائے ہوئے کھانوں کو سراہا، جس پر نگین سے زیادہ امی کو خوشی ہوئی تھی۔ امجد بھی بہت موڈ میں تھا۔ نگین نے نوٹ کیا تھا جب سارے گھر والے موجود ہوتے ہیں تو وہ خاصے ڈھنگ سے بیہیو کرنے لگتے ہیں، اور یہ بات نگین کے لیے خاصی تسلی بخش تھی۔ جوائنٹ فیملی کا پریشر اچھے اچھوں کا دماغ ٹھکانے پر رکھتا ہے، یہی سوچ کر وہ بھی بہت دنوں بعد پرسکون تھی۔ سارا کی کمپنی میں کوئی بور نہیں ہو سکتا تھا، اس کے پاس زمانے بھر کے قصے موجود رہتے تھے۔ بہت سارا وقت ایسا گزر گیا کہ پتہ نہیں چل سکا، مگر جب کھانے کے بعد وہ سارا پھیلاوا سمیٹتی پھر رہی تھی، محض ایک بات امجد کی ناراضگی کا سبب بن گئی۔ نگین، کل تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تم گلی کے کارنر تک آ جانا، میں تمہیں وہاں سے پک کر لوں گا۔ وہ ہاتھ میں پانی کا جگ تھامے حیران نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ برآمدے میں اس وقت کوئی دوسرا نہیں تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ گھر سے تو تم نکلتی ہی ہو، کسی دوست کے ہاں جانے کے بہانے نکل آنا، اس نے مزید تفصیل سے سمجھایا۔ نگین نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ اس انتہائی چھچورے پروگرام پر عمل درآمد تو دور کی بات، اسے تو سن کر ہی شرمندگی ہو رہی تھی۔ ایسے چھپ چھپا کر جانے کی کیا ضرورت ہے جب تمہارے یہاں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے؟ سمجھا کرو۔ امجد نے لہجے کو دانستہ نرم رکھا۔ میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو یہاں ممکن نہیں۔ کیوں؟ یہاں تمہیں کون روکتا ہے؟ تمہاری ہر بات سنتی ہی ہوں۔ ایک تو تم ہر بات میں بحث کرنا شروع کر دیتی ہو، مجال ہے جو ایک بار کے کہے میں مان جاؤ۔ امجد کا موڈ بگڑنا شروع ہو گیا تھا مگر وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی۔ تمہاری بات ہی اصولی طور پر غلط ہے اور میں یہ جھوٹ سچ ملانے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کے اطمینان پر وہ بھڑکا۔ میرے تمام دوستوں کی منگیتریں تو کیا، فرینڈز بھی آزادانہ باہر ملتی ہیں، تو کیا وہ غلط کرتی ہیں؟ میں اوروں کی نہیں اپنی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ باتیں ابھی تک معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ اندر سے شاید سارا آ رہی تھی۔ نگین مزید بحث سے بچنے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ سارا وہیں آ گئی۔ امجد کو اکیلا برآمدے میں کھڑا دیکھ اسے شاید کچھ محسوس ہوا تھا، جب ہی تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ نگین سے پوچھ بیٹھی، یہ امجد بھائی کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ ہاں بس ایسے ہی، اس نے ٹالنا چاہا۔ تم ذرا چائے کا پانی تو چولہے پر رکھنا۔ وہ خود گلاس اسٹینڈ پر لگا رہی تھی۔ سارا نے خاموشی سے کیتلی اٹھا کر اس میں پانی ڈالا اور چولہا جلاتے ہوئے بولی، امجد بھائی کی عادتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، معلوم نہیں وہ تمہیں بھی کیا کچھ کہہ بیٹھتے ہوں گے۔ میں تو بہت دعا کرتی ہوں کہ خیریت سے یہ شادی ہو جائے، پھر تو تم انہیں سنبھال ہی لوگی۔ نگین کو ہنسی آ گئی۔ کس قدر احمقانہ توقعات ایک دوسرے سے وابستہ کر لی جاتی ہیں۔ اسے اپنے اندر ایسے کوئی گٹس کبھی محسوس نہیں ہوئے تھے۔ وہ تو خود بہتری کے لیے ان لوگوں کی طرف دیکھتی تھی۔ بہرحال اس وقت اس کی ہنسی سے سارا کو اطمینان سا ہوا۔ نگین کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ بہت محبت سے بولی،
ہم سب تمہیں بہت پیار کرتے ہیں نگین۔ امجد بھائی بھی دل کے برے نہیں ہیں۔ چائے کا پانی پک رہا ہے جناب۔ نگین نے آہستگی سے اسے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چائے باہر لاتے ہوئے گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا اور ایسا نگین نے دانستہ کیا تھا۔ باقی سارا وقت وہ سب لوگوں کے درمیان ہی بیٹھی رہی اور امجد کے بگڑے ہوئے تیوروں کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اپنے طور پر وہ بات ختم کر چکی تھی، اسی لیے مطمئن تھی، مگر یہ سارا اطمینان رخصت ہوا جب سب جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ٹھیک 4:30 بجے تمہارا انتظار کروں گا۔ بہت ہلکے سے وہ نگین کے قریب آ کر بولا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکے گی۔ اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ نگین کا اگلا دن اسی ادھیڑبن میں گزرا۔ جانا وانا تو اسے خیر کہاں تھا، مگر سارا وقت اس پر کوس سوار رہی۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہا تھا اس کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ 3 بجے کے قریب سارا کا فون آیا تو باتوں باتوں میں پتا چلا کہ آج امجد دیر سے گھر آنے کا کہہ کر گیا ہے، اور یہ دیر اس نے یقیناً نگین کے کھاتے میں ہی درج کرنی تھی۔ منگنی نہ ہوئی، زندگی عذاب ہو کر رہ گئی ہے۔ ہر وقت کا ہوا سر پر سوار ہو کر رہ گیا ہے۔ فون کریڈل پر رکھتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ آج شام کو ٹیوشن پر آنے والے بچوں کی چھٹی تھی، اس لیے اس نے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ دیکھ کر کھولنے سے بہتر سمجھا کہ کمرے کے پردے گرا کر سو جائے، سو یہی کیا۔ جب آنکھ کھلی تو گھڑی کی سوئیاں 5:20 کا وقت بتا رہی تھیں۔ نگین کے دل کو بہت سکون سا محسوس ہوا۔ ڈیڈ لائن گزر چکی تھی۔ اب محض امجد کی ناراضگی کا سامنا کرنا باقی تھا، جو کہ اس کے خیال میں اتنا مشکل مرحلہ نہیں تھا۔ امجد کے موڈ کی اب وہ عادی ہوتی جا رہی تھی، پر اس بار کچھ الگ سا ہوا۔ ابتدائی 2 دن تو وہ منتظر رہی کہ وہ کب آ کر اس کی خبر لے گا۔ وہ گزر گئے تو اس نے سوچا شاید امجد کو اپنی نامعقولیت کا خود ہی اندازہ ہو گیا ہے، اسی لیے اگلے کچھ روز بھی وہ مطمئن رہی۔ مزید تسلی کے لیے سارا سے فون پر بات کی تو وہاں سے بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ صاحب کا منہ پھولا ہوا ہے، مگر جب اگلا ہفتہ بھی پورا ایسا ہی نکل گیا تو یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی کہ اس کا اندازہ تھا، جو کہ صحیح تھا۔ 14 15 16 17 نگین نے انگلی کے پوروں پر شمار کیا۔ امجد کو آئے ٹھیک 17واں دن تھا اور اس کی اتنی لمبی ناراضگی حیران کن تھی۔ عام طور پر اس کا زیادہ دیر برداشت کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کہہ سن کر اپنی بھڑاس نکال لینا ہی اس کا شیوا تھا، اور نگین کے خیال میں ایک طرح سے اچھا ہی تھا، کیونکہ جس طرح وہ منٹ منٹ پر ناراض ہوتا تھا اسی طرح جلدی نارمل بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ کسی بہت سنجیدہ صورتحال کا سامنا کرنے کا امکان بڑھ رہا تھا۔ نگین بہت وہمی ہو رہی تھی۔ امجد محض غصہ ور ہوتا تو شاید اسے اتنی پریشانی نہیں ہوتی، مگر اس کی طبیعت میں حد سے بڑھا ہوا شک کا عنصر اسے سہما دیتا تھا۔ بعض اوقات وہ اپنی طرف سے کچھ بھی فرض کر لینے کی رو میں اتنا آگے بڑھ جاتا تھا کہ نگین کو اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہوتا تھا، مگر سب باتوں کے باوجود وہ اس بندھن کو نبھانے میں پرخلوص تھی، اسی لیے اسے ذرا سی بھی غلطی نہ ہونے کے باوجود اس نے امجد کو فون کر کے صلح کی پہلی کوشش کر لینے کے متعلق سنجیدگی سے سوچا، اور پھر اس پر عمل بھی کر ڈالتی کہ سجیلا آ گئی۔ اتنے دن سے وہ بھی غائب تھی، بہت دن ہو گئے تھے، میں نے سوچا مل ہی لوں تم سے، وہ بشاشت سے بولی۔ اس کے انداز سے بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ان دونوں کی آخری ملاقات کا اختتام کس ناگوار احساس کے ساتھ ہوا تھا۔ نگین کو بھی جواباً مسکرانا پڑا۔ سجیلا کاٹن کا نیا سوٹ پہنے ہوئے تھی جو صاف ریڈی میڈ لگ رہا تھا، مگر سجیلا نے بتایا کہ اس نے خود بڑی محنت سے سیا ہے۔ ماشاءاللہ، اتنی صفائی آ گئی ہے کہ لوگ میرے سیے ہوئے کپڑوں کو ریڈی میڈ سمجھتے ہیں۔ الفاظ کے الٹ پھیر کے ساتھ اس نے یہ جملہ کم از کم چوتھی بار دہرایا تو نگین نے بھی مروتاً سر ہلا کر تائید کر دی۔ حالانکہ سوچنے کا مقام تھا کہ سارا دن جہاں تہاں پھرنے کی مصروفیت میں سجیلا کے پاس اس کمال درجے کی صفائی پیدا کرنے کا وقت کہاں سے آ گیا تھا۔ اندر چل کر بیٹھنے کا نگین کا مشورہ اس نے فوراً ہی رد کر دیا۔ اتنا بڑا صحن ہے تمہارا، مجھے تو یہیں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ہرے بھرے پودوں کے پاس۔ نگین مسکرا دی۔ ان کا صحن واقعی بہت، اور شام کو بیٹھنے کے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی اچھی جگہ نہیں تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے نگین نے کئی بار محسوس کیا کہ سجیلا کی نگاہیں بار بار بیرونی دروازے کی جانب اٹھ رہی ہیں۔ اسے کچھ پوچھنا اچھا نہیں لگا، مگر جب تھوڑی ہی دیر بعد امجد اندر آتا دکھائی دیا تو اسے لگا کہ سجیلا امجد کی آج یہاں آمد سے واقف تھی، اور یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی۔ کیا حال ہے؟ امجد نے بالکل رسمی سے انداز میں نگین سے پوچھا۔ بس ٹھیک ٹھاک، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ کئی دن بعد آج اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ دل میں اٹھتے ہوئے شک و شبہات کو جھٹک کر وہ اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آخر اتنے دن سے وہ کہاں غائب تھا، پر سجیلا کی موجودگی میں۔ ہمارا بھی حال پوچھ لینا، ہم بھی آخر یہیں بیٹھے ہیں۔ سجیلا کی مسکراہٹ گہری تھی اور اسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ڈھنگ خوب آتا تھا۔ امجد بھی جیسے کھل اٹھا۔ آپ کا حال تو آپ کے چہرے سے نظر آتا ہے، اب زبان سے کیا پوچھیں؟ کیا مطلب؟ خود پر معصومیت طاری کرنے کی بہت بھونڈی کوشش کی گئی۔ بھائی، ایک خوبصورت اور تر و تازہ چہرہ اپنا حال خود بیان کرتا ہے۔
امجد کی اس قدر کھلی تعریف اور سجیلا کی اطراحٹ دونوں ہی نگین کا دل جلانے کے لیے کافی تھے۔ وہ کھول کر رہ گئی۔ امی اور ابا آج کسی عزیز کی عیادت کے لیے گئے تھے، اس لیے ان دونوں کے لیے ماحول سازگار تھا۔ سجیلا نے اپنی باتوں کا پٹارا کھول لیا تھا اور بڑی ذہانت سے موضوع پر موضوع بدل رہی تھی۔ اس کا نیا کاٹن کا سوٹ، ہلکا ہلکا میک اپ، دل فریب مسکراہٹ اور سب سے بڑھ کر امجد کی مسکراتی نگاہیں جو مستقل سجیلا پر جمی ہوئی تھیں۔ نگین نے چور نگاہوں سے اسے اپنا جائزہ لیا تو خود ہی کو قصوروار پایا۔ 10 بار کا دھلا ہوا پرنٹڈ آسمانی سوٹ، یوں ہی 2-4 ہاتھ مار کے بنائے ہوئے بال جس میں سے کئی لٹیں بینڈ کی کیسے آزاد ہو چکی تھیں، اور دھلا دھلایا چہرہ، کم از کم اس وقت تو وہ سجیلا کے مقابلے میں بالکل ہی ناقابل توجہ لگ رہی تھی۔ کیا ہے اگر وہ شام کو ایک بہتر سا سوٹ پہن کر سجیلا جیسا میک اپ نہ سہی کچھ کم سہی اپنا حلیہ درست کر لیا کرے۔ آخر کپڑوں کی اس کے پاس بھی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ نگین کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ بہت دل چاہا کہ کسی بہانے اٹھ کر خود کو تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک کر لے، مگر شاید اب اچھا نہ لگتا۔ سجیلا تو اڑتی چڑیا کے پر گننے والوں میں سے تھی، فوراً سمجھ جاتی کہ ایسا اس کی نقل میں کیا گیا ہے۔ نگین چائے نہیں پلواؤ گی آج؟ امجد نے باتوں کا سلسلہ روک کر فرمائش کی تو وہ تعمیل کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن کی کھڑکی سے وہ دونوں اسے نظر آ رہے تھے۔ ان کے کامن انٹرسٹ یقیناً بہت سارے ہوں گے، جب بھی ان کی گفتگو ایک تسلسل سے جاری رہتی تھی۔ نگین نے سوچا کہ اگر آج سجیلا نہ آئی ہوتی تو وہ بھی امجد سے بہت ساری باتیں کرتی۔ آخر اتنے دن کے انتظار کے بعد تو وہ آیا تھا۔ آج اسے سجیلا کا آنا پہلے سے کہیں زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اپنے متعلق خاصی سمجھداری کا دعویٰ رکھنے کے باوجود آج اس نے بار بار اپنا اور سجیلا کا موازنہ کیا تھا اور ہر بار اس کی برتری محسوس کر کے رنجیدہ ہوئی تھی۔ وہ چائے لے کر وہاں آئی تو محفل اسی طرح گرم تھی۔ ارے نگین، خیر تو ہے؟ کل ادی بہت دیر تک تمہارے گھر بیٹھ کر گیا ہے؟ چائے کا کپ تھامتے ہوئے سجیلا نے اس طرح پوچھا گویا اسے ابھی ابھی یہ بات یاد آئی ہو۔ ادی؟ ہاں، وہ آیا تو تھا۔ امجد کی پیشانی پر پڑنے والے بل نگین کو گڑبڑانے کے لیے کافی تھے، پھر بھی اس نے وضاحت ضرور کی۔ میں تو گھر پر نہیں تھی، امی کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ وہ تو ابا کے پاس آیا تھا۔ اچھا کو خاصا کھینچ کر ادا کرتے ہوئے سجیلا کی مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ خیر، میں تو ایسے ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ نگین خاموش رہی۔ سجیلا نے یہ بات امجد کو جتانے کے لیے پوچھی ہے، اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ ماحول پر ایک دم ہی خاموشی چھا گئی، جیسے کوئی بہت سنجیدہ بات ہو گئی ہو۔ اتنی دیر سے جو وہ دونوں یہاں خوش دلی سے کہہ لگا رہے تھے، تو کیا اس ایک بات کو بھی ہنسی میں نہیں اڑایا جا سکتا تھا؟ نگین نے چور نگاہوں سے امجد کو دیکھا۔ وہ چہرہ سک کیے فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور قریب بیٹھی سجیلا چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی ہوئی اپنا بایاں پاؤں دھیرے دھیرے سے ہلا رہی تھی۔ اچھا بھائی، میں تو چلی۔ سجیلا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم تو اپنا دل صاف رکھتے ہیں، اسی لیے آ جاتے ہیں۔ نگین تو شاید اب تک ناراض ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ سجیلا جا رہی تھی، یہی شکر تھا۔ وہ دونوں ابھی کھڑی ہوئی ہی تھیں کہ امی اور ابا بھی واپس آ گئے۔ دونوں ہی نے امجد کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اس کے نہ آنے کا تذکرہ کیا، مگر امجد کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا۔ رسمی سے جواب دے کر وہ اپنی سابقہ پوزیشن میں ہی رہا۔ اس کا یوں چھوٹی سی چھوٹی بات پکڑنا نگین کو ہمیشہ رنجیدہ کر دیتا تھا۔ آج کچھ زیادہ ہی محسوس ہوا، شاید اسی لیے کہ آج جیسے جذبات اس نے امجد کے لیے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیے تھے۔ سجیلا چلی گئی تھی، ایک ناکردہ گناہ اس کے سر تھوپ کر۔ اس نے مزے سے اپنی راہ لی تھی اور اب اسے کئی دن تک امجد کے جملوں کی زد میں رہنا تھا۔ نگین منتظر تھی کہ اب وہ کچھ کہے گا، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ یہ خاموشی نگین کو زیادہ ڈرا رہی تھی۔ اس دن کے نہ آنے کا بھی اس نے کوئی گلہ نہیں کیا تھا، حالانکہ دوسروں کی غلطیوں کو وہ بھولنے والا اور بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھا، مگر اب تو وہ بالکل اجنبی بنا بیٹھا تھا۔ اور پھر 10-15 منٹ بعد ہی اس سرد فضا کو قائم رکھے وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نگین کی ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ اسے رکنے کے لیے کہہ سکے۔ البتہ جب وہ اپنی بائک کو سٹارٹ کر رہا تھا تو اس نے اتنا ضرور پوچھا، اب کب آؤ گے تم؟ جب فرصت ملے گی۔ یہ مختصر سا جواب عنایت کرتے ہوئے بھی اس نے نگین کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ہمیشہ وہ خدا حافظ کہہ کر گیٹ بند کر لیتی تھی، مگر آج خلاف عادت وہ اس کی جاتی ہوئی بائک کو دیکھنے لگی۔ دفعتاً اسے لگا کہ امجد کی بائک گلی کے موڑ پر مڑنے کی بجائے کہیں راستے میں ہی رک گئی ہے۔ نگین نے تھوڑا سا بڑھ کر جھانکا۔ آگے کئی گھروں کے سامنے گاڑیاں پارک کی ہوئی تھیں۔ اسے امجد کی بائک کی کچھ جھلک سی دکھائی دی۔ وہ شاید تھوڑا سا اور آگے جا کر دیکھ لیتی تو کنفرم ہو جاتا، مگر اسی وقت ابا کے 2-3 ملنے والے ایک ساتھ آ گئے۔ ان کے سامنے گلی میں بے مقصد کھڑے ہونا اسے معیوب سا لگا۔ سلام کر کے جلدی سے اندر آ گئی تاکہ ابا کو اطلاع کر سکے۔ دل پر ایک بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے تو سجیلا کو امجد کی یہاں آمد کے بارے میں معلومات رکھنے پر ہی وہ شبہات کا شکار ہو رہی تھی۔ اب امجد کی بائک کے بارے میں بھی اس کا 95% یہی خیال تھا کہ وہ سجیلا کے گھر کے باہر رکی ہوئی تھی۔
अब्बा के मिलने वाले गेट के आगे बिछी कुर्सियों पर जो महफिल जमा कर बैठे तो अच्छी खासी देर तक मसरूफ रहे, वो दोबारा गेट तक जा ही ना सकी। सजीला और अमजद के माबैन ताल्लुकात की नोयत एक बड़े से सवालिया निशान की सूरत में सामने थी, और इस सवाल को हल करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत थी, जो फिलहाल उसमें नहीं थी। ये सब मुझसे नहीं हो सकता, भला कोई तुक भी हो। भाभी ने कमाल मुरवती का मुजाहिरा किया। वो इस वक्त जिम्मेदार बीवी का रोल निभाते हुए अपने मियाँ के हफ्ता भर के कपड़े इस्त्री करके हैंगर कर रही थीं। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप यूं मुनकर हो रही हैं? तो क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं बहाने से नगीन को बुलवाकर तुमसे मुलाकातें करवाती फिरूं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अदी ने बेख्तियार सर पकड़ लिया। अरे यार, मैं आपको इतना छिछोरा कब से लगने लगा हूँ? मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है और बस। उस दिन इतनी देर अंकल के पास बैठा रहा, मगर वो और आंटी घर पर नहीं थी। देखो अदी, भाभी ने स्विच बंद किया और पूरी तरह से उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। पहली बात तो ये है कि तुम कोई भी ऐसी बात नहीं करोगे जिससे नगीन और अमजद के रिश्ते पर कोई जद पड़े, समझे? और दूसरा ये कि अगर तुम रावलपिंडी जाना नहीं चाहते, मत जाओ। मैं तुम्हें यहीं बहुत अच्छी लड़कियां बताती हूँ, उनमें से कोई मुंतखब कर लो ताकि हम लोग तुम्हारा रिश्ता तय कर दें। ये एक पेराई में आपने दो बिल्कुल मुख्तलिफ हदायतें जारी की हैं। फिल वक्त तो इतना है कि अरे अहमद, जरा बात सुनो। जुमला बीच में छोड़कर उसने बाहर जाते हुए अहमद को पुकारा। जरा जाकर अपनी नगीन बाजी को बुला लाओ, तुम्हारी अम्मी को बहुत जरूरी काम है उनसे। जी अच्छा। लाउंज के दरवाजे पर खड़े अहमद ने सादतमंदी का सबूत दिया और फौरन ही बाहर निकल गया। भाभी आवाजें ही देती रह गईं। बहुत गलत बात है तुम्हारी। वो शरीफ लोग हैं और हमारे घराने पर एतमाद रखते हैं, जब ही नगीन यहाँ बचपन से आ रही है। भाभी को अदी की हरकत बहुत नागवार गुजरी थी, मगर वो मुतमईन था। भाभी प्लीज यार, मुझे वाकई एक जरूरी बात करनी है। बिल्कुल दूसरी बात, आप ये मत समझें कि मुझे अपना केस पेश करने की जल्दी है। फिर क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। उन्हें दर हकीकत उससे यही खदशा लाहक था। फिर बता दूंगा आपको, अभी मत पूछें। उन्हें हार माननी पड़ी। दरअसल इन मामलों में उसका रिकॉर्ड इतना शफाफ था कि उस पर ज्यादा देर तक शक किया ही नहीं जा सकता था। यह पहली मर्तबा था कि उन्हें उसका झुकाव किसी लड़की की तरफ नजर आया था। अब मुझे बताओ, वो आ गई तो क्या बहाना पेश करूं बुलवाने का? उन्हें अपनी फिक्र हुई। ये जो इतने सूट लाया हूँ आपके लिए पिशावर से, वही दिखाने का बहाना कर दीजिएगा। लड़की ऐसी मसरूफियत से वैसे भी खुश होती हैं। उसका मशवरा हाजिर था। भाभी उसे घूर कर रह गई। अलबत्ता जब नगीन आई तो उन्हें वही करना पड़ा। कपड़ों का बड़ा सा शॉपर लिया वो लाउंज में बैठी उससे मशवरा करती रही कि किस सूट के लिए क्या मुनासिब रहेगा। अम्मी अपने कमरे में थीं और अदी भी फिलहाल वहाँ नहीं था। नगीन इत्मीनान से बैठी रही। भाभी जरा किचन से आ रही हूँ कहकर उठी, तब भी उसके इन्हमाक में खलल नहीं आया। मुख्तलिफ सूटों के कपड़ों को तय करती हुई वो इस वक्त चौंकी जब अदी लाउंज में आया। अरे तुम! वो ऐसे चौंका गोया नगीन की घर में मौजूदगी से अभी तक लाइल्म था। नगीन को इखलाकन मुस्कुराना पड़ा। और क्या हो रहा है? वो कुर्सी खींच कर बैठा तो उसे घबराहट शुरू हुई। अमजद की उस दिन वाली नाराजगी की वजह अदी की ही जात थी, जबकि वो घर में मौजूद ही नहीं थी। अगर वो यूं उससे बातें करता देख ले तो वो ना जाने क्या रिएक्शन दे। तुम अभी तक गए नहीं? घबराहट में यही पूछ लिया। दरअसल वो खुद ही ये फर्ज किए बैठी थी कि अदी अब तक वापस जा चुका होगा। उसकी छुट्टियां अमूमन मुख्तसर ही हुआ करती थी। चला जाऊंगा कुछ दिन तक। नगीन ने गर्दन झुका ली। अदी आय संजीदा लग रहा था। नगीन ने सोचा कि उसे उठ जाना चाहिए, मगर वो उसका इरादा भांपते हुए फौरन ही बोल उठा। नगीन, मुझे तुमसे अमजद के बारे में कुछ बात करनी थी। बगैर किसी तमहीद के वो असल मौजू पर आया था और उसके लहजे से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि बात कुछ खुश आइंद नहीं है। हो सकता है, बल्कि यकीनन तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, मगर यह जरूरी है कि तुम्हें आगाह कर दूं। उसने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। इस जरा सी देर में ही नगीन ने क्यास के घोड़े दूर तक दौड़ा दिए। कहीं उस दिन की अमजद की नाराजगी तो अदी के इल्म में नहीं आ गई, या अमजद ने अदी को बराह रास्त ही उनके घर आने से मना किया हो, या कुछ और। या अल्लाह, ये शख्स असल बात बता क्यों नहीं देता? ख्वामखा का सस्पेंस फैलाना। वो कि अदी के मुंह से ये सब सुनना इंतहाई हित्तक आमेज लगेगा। फिर भी अदी ने नगीन की जानिब देखा। उसकी आंखों में फिक्रमंदी थी और अब वो उसकी परेशानी में और इजाफा करने जा रहा है, मगर मजबूरी थी। अभी कुछ दिन पहले मैं घर की तरफ आ रहा था तो मुझे अमजद कॉर्नर पर खड़ा नजर आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी का इंतजार हो। उसने बात शुरू की। मैंने सोचा आगे बढ़कर उससे मिल लूं, मगर पर चौंकने की बजाय नगीन ने दिल में शुक्र अदा किया कि वो अमजद के बुलाने पर नहीं गई थी। अगर उस दिन वहां अदी से सामना हो जाता तो वो तो आज आंख मिलाने के काबिल भी नहीं होती। मैं बढ़ा ही था कि न जाने वहां कहां से सजीला आ गई। शायद करीब की दुकान से कुछ ले रही थी। तो बहरहाल वो दोनों वहीं खड़े खड़े बातें करने लगे। इस आगे की कहानी से वो कतई लाइल्म थी जो अदी बयान कर रहा था। ठंडे होते हाथ पांव के साथ उसे सुनना पड़ा कि अमजद हंस हंस कर सजीला से बातें करता रहा और फिर सजीला उसके साथ बाइक पर बैठकर चली गई।
किसी के बारे में तजस्सुस करना अच्छी बात नहीं, मगर इन दोनों की बेतकल्लुफ़ी मेरे लिए इतनी सरप्राइजिंग थी कि मैं तुम्हारे इल्म में लाए बगैर नहीं रह सका। अदी के लिए अपनी सफाई देना भी ज़रूरी हो गया था। सर झुकाए झुकाए उसने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद करके जैसे अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा किया और फिर बहुत सुकून से सर उठाकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है अदी, वो तो सजीला को सारा से कुछ काम था, इसलिए मामू जान के घर ही गई थी। सजीला और सारा की बहुत दोस्ती है ना, इसीलिए आना जाना रहता है। अदी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कभी कभी झूठ बोलने वालों की जुबान 10 बार लड़खड़ा जाती है, मगर नगीन ने तो हद ही कर दी। आवाज़ में ज़रा सी लर्जिश भी नहीं थी। हाँ, दिल ज़रूर कांप उठा था। भाभी तो न जाने कहाँ रह गई हैं, मैं जा रही हूँ, तुम उन्हें बता देना। उसके लहजे में गैर मामूली ठंडक थी। अदी चाहते हुए भी कुछ और ना कह पाया। उसे मालूम था कि वो झूठ बोल रही है, मगर अपने सच पर इसरार करके वो इस बेहद साबिर और बावकार लड़की को झूठा साबित करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नगीन चली गई थी और वो पुरसोच निगाहें दरवाजे पर जमाए बैठा रहा। अमजद को जिस तरह उसने प्रोटेक्ट किया था, इसके बाद भी किसी उम्मीद का सिरा थामे रखना बड़ी बात थी, मगर दिल खुशफहम को क्या कहिए, वो फिर से हिम्मत बंधा रहा था। दिन तेजी से गुजर रहे थे और वक्त की सबसे अच्छी बात यही है कि वो गुजर जाता है। जो भी अच्छा बुरा होता है हो ही जाता है। किसी बहुत नागवार बात से पहुंचने वाली तकलीफ की शिद्दत भी कम होने लगती है। नगीन को भी अदी के मुंह से अमजद का कारनामा सुनकर जिस रंज का सामना करना पड़ा था, वो मिटा तो नहीं, बहरहाल कम जरूर हो गया था। कई दिन कुंडने के बाद और बहुत सी बातों के साथ उसने इस पर भी सब्र कर लिया था। ज्यादा दुख उसे अमजद का भरम टूटने का था। आज वो अदी की नजरों में आया था, कल और भी 10 जानने वालों के इल्म में आ सकता था। उसे अम्मी और मामू जान की फिक्र थी। उन दोनों की सारी खुशियां इस रिश्ते की सलामती के साथ मशरूत थीं। इन दोनों के इल्म में कुछ भी गलत सलत आने से पहले ही अमजद का यह फ्लर्टेशन का दौरा खत्म हो जाएगा। वो बस यही तमन्ना करती रही, मगर तमन्नाएं इतनी आसानी से पूरी होने लगे तो दुनिया ही जन्नत का रूप न धार ले। ऐन इन दिनों जबकि वो अमजद के आने जाने की फिक्र छोड़कर अपने रंज और शर्मिंदगी से पीछा छुड़ाने की कोशिशों में मसरूफ थी, एक शाम मामू जान मुमानी जान के सरप्राइजिंग विजिट पर तशरीफ ले आए और आते ही अब्बा और अम्मी को लेकर जो ड्राइंग रूम में बैठे तो कई घंटे गुजर गए। 2-3 दफ़ा चाय का दौर चल चुका था और अब नगीन ने खाना भी बना लिया था ताकि जब वो लोग फारिग हों तो खाना लगा लिया जाए। अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था। चाय जब वो एक बार लेकर गई तो उसके जाते ही वो चारों बिल्कुल खामोश हो गए थे और ये खामोशी जाहिर है कि मायने खेज थी। बकिया 2 बार उसे जहमत देने की बजाय अम्मी खुद ही किचन से आकर चाय ले गई थी। नगीन अंदाजे ही लगाती रह गई। सारा अगर साथ आ गई होती तो यकीनन उसकी ये उलझन रफा कर चुकी होती, मगर वो आना तो कजा कई दिन से फ़ोन भी नहीं कर रही थी, इसलिए अब उसे भी कुछ पूछना मुनासिब नहीं लगा। बहरहाल इतना यकीन ज़रूर हो चुका था कि बात अमजद और उसके हवाले से ही है, वरना उसे इतनी राजदारी बरतने की कोई वजह समझ में नहीं आती थी। भला ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था। बर्तनों को साफ करते हुए उसने बहुत बहादुरी से सोचना चाहा। खुद को किसी सिचुएशन के लिए तैयार रखने का यह उसका अपना तरीका था। बहुत से परेशान कुन मुमकिनात दिल ने फर्ज कर रखे थे, जिनमें से एक अदी की दखल अंदाजी का भी था। उसका रवैया नगीन को मशकूक करता जा रहा था, मगर वो अब वापस पेशावर जा चुका था। इस रोज नगीन से मिलने के बाद तीसरे दिन वो चला गया था। भला इतनी दूर बैठकर वो क्या कर सकता था। इस अहमकाना ख्याल को दिल से झटकना पड़ा। बहुत देर तक वो अकेली बैठी, यूं है तो यूं सही का मुअम्मा हल करती रही, यहाँ तक कि ड्राइंग रूम का दरवाजा खुल गया और वो चारों बाहर निकल आए। नगीन ने जरा संभल कर इन लोगों के तासुरात से अंदाजे लगाना चाहे तो इतना एहसास जरूर हुआ कि वो सब बुझे बुझे से थे, और इस बात की तस्दीक इस तरह हो गई जब मामू जान और मुमानी जान उसके इसरार पर भी खाने पर नहीं रुके। अम्मी अब्बा ने भी इस खुश तबई से इसरार नहीं किया जो उनका खासा थी। वो दोनों चले गए। घर में चाय खामोशी मजीद गहरी हो रही थी। खाना भी बस सरसरी सा ही खाया गया। लग रहा था कि तीनों अफराद महज एक दूसरे का साथ देने की गर्ज से ही टेबल पर आ बैठे हैं। अम्मी और अब्बा सोने चले गए तो वो भी अपने कमरे में आ गई। ईशा की नमाज से फारिग होकर भी बहुत देर तक जाए नमाज से उठने को दिल नहीं चाहा। इस उलझी हुई डोर को अब अल्लाह मियाँ ही को सुलझाना था, तो उसने भी बहुत सी दुआएं मांग डाली। रात को सोते वक्त जो खदशा उसके दिल में बार बार उभर रहा था वो सुबह होते ही सही साबित हुआ। अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई रहा करता था। वो उसके लिए टैबलेट लिया करती थी, रात भी ली थी, मगर सुबह उनकी तबीयत नॉर्मल नहीं थी। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। उसने वक्ती ट्रीटमेंट कर दी थी और साथ ही वही पुरानी टेंशन ना लें की नसीहत, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि आजकल आपस में रिश्ता नाता करना दरसरी मोड़ लेना है। कमरे में दाखिल होते हुए नगीन ने अब्बा को कहते सुना। अम्मा की बीमारी से वो हमेशा ही बौखला जाते थे। डॉक्टर की हदायत के बरक्स उनकी नसीहत और फसीहत का रूप धारने लगती थी। अब्बा आप दूसरे कमरे में चलकर लेट जाएं, थक गए होंगे। बेहतर था कि उन्हें वहां से हटा दिया जाए, सो उसने ऐसा ही किया। हालांकि वो वहीं बैठना चाह रहे थे। नगीन अम्मी के कमरे में वापस आई तो वो मामू जान को बुलवाने के लिए कहने लगी।
मैं फ़ोन कर दूंगी, मगर अभी आप आराम करें। मामू जान से शाम को मिल लीजिएगा, नगीन ने कमरे के पर्दे बराबर करते हुए कहा और फिर खुद भी उनके पास आ बैठी। करवट ले लीजिए, मैं आपकी कमर दबा दूं। अम्मी ने कोई तारुफ नहीं किया। कुछ दवाओं का असर था और कुछ उसके दबाने से उन्हें राहत मिली। वो जल्द ही सो गई। नगीन बाहर आ गई। बात वो अभी तक वाज़ेह नहीं थी, मगर फिर भी कुछ कुछ समझ में आ रही थी। नगीन का दिल तो नहीं चाह रहा था कि मामू जान के घर फ़ोन करे, मगर अम्मी की हदायत थी और वो अच्छी तरह जानती थी कि उन्हें और मामू जान को एक दूसरे से कितनी मोहब्बत है। फ़ोन किया तो मुमानी जान ने उठाया। उन्हें अम्मी की तबीयत का मुख्तसर हाल बताकर उसने सारा का पूछा तो पता चला वो घर पर नहीं है। मुमानी जान ने खुद ही कह दिया कि वो लोग शाम को अम्मी को देखने आएंगे। एक आध इधर उधर की बात करके उसने उन्हें खुदा हाफिज कह दिया। शाम को उन दोनों के साथ सारा भी आ गई। उसे देखकर नगीन को सुकून सा हुआ। जितना कुछ बुरा हो चुका था, कम अज कम पता तो चल जाएगा। अम्मी की तबीयत की वजह से आज उसने पढ़ने वाले बच्चों की छुट्टी की थी। अहमद और अकमल खुद ही नहीं आए थे। उन्हें शुबाना भाभी ने ही आज नगीन की परेशानी के ख्याल से नहीं भेजा था। वो खुद जब अम्मी सो रही थी, नगीन से उनकी तबीयत पूछकर चली गई थी। अच्छा खासा रेस्ट कर लेने से अम्मी की तबीयत शाम तक बेहतर थी और अपने भाई को देख लेने के बाद मजीद बहाल हो गई थी। नगीन सारा को लेकर कमजी भी थी और शायद इस झीम को मिटाने के लिए मुस्तकिल इधर उधर के किस्से शुरू की हुई थी। नगीन ने सोचा कि वो यकीनन इतने दिन से इसलिए फ़ोन पर नहीं थी, राब्ता नहीं कर रही थी। अपनी दांत में जब वो अच्छा खासा वक्त ज़ाया कर चुकी और असल मौजू की तरफ आकर ही ना दी, तो नगीन ने बराह रास्त पूछ ही डाला, सारा, क्या अमजद ने मंगनी तोड़ दी है? इतने इत्मीनान से वो ये सवाल सिर्फ सारा ही से कर सकती थी। क्या? अरे नहीं, इस अचानक जुमले पर वो बेहद बौखलाई। ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? कोई मजाक है क्या? नगीन तल्खी से मुस्कुरा दी। मजाक तो हो रहा था उसकी अपनी जिंदगी के साथ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब्बा है ना, वो देख लेंगे अमजद भाई को अच्छी तरह से। ना जाने ये कम वक्त सजीला कहाँ से दरमियान में आ गई है। मेरी तो अकल हैरान है। वो बोलती रही और नागिन खामोशी से सुने गई। अब उसे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं थी। जितना कुछ भी मंजर आम पर आया था, सारा को सभी सुना देना था। हिम्मत देखो इसकी, अमजद भाई के ऑफिस तक धड़ल्ले से जाने लगी है। रोजाना लंच टाइम पर पहुंची हुई होती है। नगीन का दिल चाहा कि कहे कि ये हिम्मत खुद अमजद ने सजीला को बख्शी है, मगर कह ना पाई। बस खामोशी से सारा का चेहरा देखे गई। अमजद के ऑफिस में मामू जान के कोई जानने वाले थे। उन्होंने ही मामू जान को साहबजादे की गैर इखलाकी सरगर्मियों की रिपोर्ट देकर अपना फर्ज निभाया था। फूफी जान ने बताया है कि यहाँ भी एक आध बार वो अमजद भाई की मौजूदगी में आई है। नगीन ने इस बात में सर हिलाया। तुमने कुछ नोट तो किया होगा? सारा के इस्तफसार पर वो धीरे से बोली। हाँ, और मेरा ख्याल है सारा कि अब अमजद सजीला के घर भी आने जाने लगा था। क्या? सारा की हैरत बजा थी। और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अब मैं क्या बताती? हो सकता है मेरा वहम ही हो। हद करती हो नगीन, अगर जरा अकल को जहमत देती तो बात इतनी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। नगीन खामोशी रही। सजीला के आगे उसका चिराग जलना मुश्किल था। ये बात वो खुद तो समझ सकती थी, मगर सारा को नहीं समझा सकती थी। तुमसे मंगनी में अमजद भाई की पूरी रजामंदी शामिल थी। जाहिर है कि तुम्हें पसंद करते थे, इसीलिए राजी हुए थे। हालांकि अम्मी तो। सारा को एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कहने जा रही है, इसलिए फिक्रा पूरा नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मुमानी जान को यह रिश्ता पसंद नहीं था। नगीन ने जैसे उसकी शर्मिंदगी दूर करना चाही। फिर भी अगले चंद मिनट सारा ने उसे ये पावर करवाने में गुजारे कि अम्मी शुरू में ज़रूर मुखालिफ थीं, लेकिन अब वो नगीन की ज़बरदस्त हामी हैं और अमजद की नालायकी को हरगिज़ माफ़ करने के मूड में नहीं है। अमजद क्या कह रहा है? नगीन ने उसे दोबारा मौजू पर लाना चाहा। जो बात वो सुनना चाह रही थी वो यही थी। बस ऐसे ही इधर उधर की हाँक रहे हैं। अभी तक इनकी बातों में संजीदगी तो आई नहीं है। सारा अमूमन बेवकूफ़ी की हद तक जज्बाती ज़रूर हो जाती थी, मगर इस वक्त वो खुद को कंट्रोल कर गई। अमजद अब नगीन से शादी से साफ इनकारी है, ये कहने की वो खुद में हिम्मत नहीं कर पाई थी। और दूसरा, उसे अपने अब्बा पर यकीन था कि वो सारे मामले को दुरुस्त कर लेंगे। फिर ख्वामखा नगीन को रंजीदा करना। उसे सजीला की कई बुराइयां याद आ रही थीं, जो बकौल उसके वो हमेशा से नोट करती चली आ रही थी। सब वो उन्हीं के जिक्र में मशगूल रही और नगीन को जाहिर है कि फिलहाल ये सब सुनना ही था। डाइनिंग हॉल का माहौल पुरसुकून था और शीशे की दीवार के इस पार स्विमिंग पूल पर जलती लाइट्स अतराफ को खूबसूरत तासुर दे रही थीं। वो दोनों इस वक्त यहाँ खाना खाने आए थे। सजीला की कई दिनों से फरमाइश थी। आम से रेस्टोरेंट में वो अमजद के साथ कई बार जा चुकी थी। अब उसकी फरमाइश की 5 नहीं तो 4 स्टार होटल की थी। सो आज वो दोनों यहाँ थे, शहर के बेहतरीन होटलों में से एक पर, जहाँ शहर के आला तरीन तबके की आमदोरफ्त मामूल का हिस्सा होती है। अपर सोसाइटी की एक झलक भी सजीला को बेहद मुतासिर कर जाती थी। इस वक्त जहाँ बैठकर वो खुद को उन्हीं में से एक समझते हुए काफ़ी ओवर हो रही थी।
तुम इस कदर डल क्यों हो रहे हो? जब से आए हैं बिल्कुल खामोश हो। इर्द गिर्द के जायजे से फारिग होकर सजीला को अमजद का ख्याल भी आ गया, जो शाम में घर वालों से होने वाली झड़प के जेर असर था। उसके टोकने पर वो जबरदस्ती मुस्कुराकर सामने रखे खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। सजीला ने खासा बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था, जिसकी अदायगी जाहिर है उसकी जेब से ही होनी थी। पैसों की उसे ज्यादा फिक्र नहीं थी। महीने की शुरू की तारीखें थीं, कम और बेश सारी तनख्वाह भी जेब में ही थी। अब्बा का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, इसीलिए वो घर की फिक्रों से आज़ाद था। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि वो उल्टा अम्मी ही से किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ पैसे लेता रहता था। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई फिक्र, ना कोई सैर तफरी मौज मस्ती, ना कोई फिक्र ना कोई गम, बस सैर तफरी और मौज मस्ती। सजीला बेहद खुश थी। अमजद आज उस पर रंग जमाने के लिए गाड़ी भी ले आया था। शाम को अब्बा तो उस पर डांट डपट करके अपने कमरे में बंद हो गए थे। अम्मा की जरा सी खुशामद करके गाड़ी की चाबी लेने में उसे कोई दुश्वारी नहीं हुई। तुम लोग तो अक्सर यहाँ आते रहते होगे अमजद। हाँ हाँ, बस आ ही जाते हैं। उसे गड़बड़ाकर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा। अब ये तो कह नहीं सकता था कि बावजूद तमाम आसानी के अब्बा को बेमकसद तफरीहात पर पैसा खर्च करना सख्त नापसंद है। सुनो, शादी के बाद हम लोग यहाँ जरूर आया करेंगे। सजीला ने अपने मुस्तकबिल के प्रोग्राम से उसे आगाह किया तो अमजद के हरक में कुछ अटकने से लगा। शादी? सजीला ने इस काम को बेहद आसान समझ रखा था। वो वक्तन फवक्तन इस मौजू को छेड़े रखती थी। चुप क्यों हो गए? मेरी बात बुरी लगी है क्या? उसने जैसे अमजद के दिल का चोर पकड़ लिया। यही बात है। अपने ख्याल की तस्दीक भी उसने खुद ही कर डाली। जब भी मैं शादी का जिक्र करती हूँ तो यूं ही गुमसुम होकर बैठ जाते हो। अगर शादी नहीं करनी है तो फिर इस सारे ड्रामे का मकसद क्या है आखिर? मैं कोई गलत किस्म? सजीला की आवाज ऊंची होने लगी। कुछ लोगों ने गर्दनें मोड़कर देखने की भी जहमत उठाई। अमजद यहाँ तमाशा नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए फौरन खुशामद पर उतर आया। प्लीज सजीला, मेरा मतलब ये नहीं था। बात को समझा करो। देखो, घर वालों के राजी होने में टाइम लगेगा। अब्बा तो नगीन के अलावा किसी और का नाम तक नहीं आने देना चाहते। तुम उन्हें नगीन की असलियत से क्यों नहीं आगाह करते? सारे मोहल्ले में उसके और अदी के किस्से मशहूर हैं। देखना फिर किस आसानी से तुम्हारे अब्बा हमारे रिश्ते पर राजी होते हैं। अमजद जवाबन खामोश रहा। उसके मशवरे पर अमल करना नामुमकिनात में से था। नगीन के बारे में कोई ऐसी वैसी बात मुंह से निकालना आसान नहीं था। अब्बा तो बात पूरी सुने बगैर ही उसे घर से निकाल बाहर करते। अपनी बात का हौसला अफजा जवाब ना पाकर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो यूं उकताई उकताई ना रहा करती। तुम्हारे सामने तो वो संजीदा होकर बैठ जाती है। वो ये बात पहले भी दोहरा चुकी थी और अमजद को उसकी सच्चाई में रत्ती भर भी शुबा नहीं था। हकीकतन ऐसा ही था। उसके सर हिलाने की देर थी, गोया सजीला के मन की मुराद पूरी हुई। बकिया सारी रात उसका अमजद को यह बावर कराने में गुजरा कि महज अमजद की खुशी की खातिर वो घर से बहाने बनाकर निकल रही है, जबकि उनके घर में लड़कियों पर बेहद सख्ती रखी जाती है। और ऐसा नगीन भी यकीनन कर सकती थी अगर उसके दिल में अमजद के लिए जगह होती। वो बोलती रही। सामने रखा हुआ खाना भी उसकी तवज्जो से महरूम नहीं था। कुछ उसके बोलने का अंदाज पुरअसर था और कुछ अमजद की अकल पर पड़ा पर्दा भी दिन ब दिन दबीज होता जा रहा था। एक एक लफ्ज अमजद के दिल में घर करता जा रहा था। नगीन की मतानत, बुर्दबारी, खानदान का माहौल, उसे हर बात में बुराई का पहलू नजर आ रहा था। नगीन से मंगनी करवाने के लिए उसने उसके साथ जो जिद बहस की थी वो अब अपनी बेवकूफ़ी महसूस हो रही थी। बेबुनियाद बातों पर शक के पहाड़ खड़े कर लेना उसकी पुरानी आदत थी। अब भी यही हुआ था और उसके पीछे खड़ी नगीन को सफाई का मौका देने का उसका कोई इरादा नहीं था। सजीला को उसके घर से जरा पहले ही अमजद ने उतार दिया था, क्योंकि बकौल उसके वो घर से सहेली की मंगनी का बहाना करके निकली थी और इस मोहब्बत भरे झूठ पर अमजद उसका दिल से ममनून था। शहर में किताबों की नुमाइश थी। सारा और हैदर का प्रोग्राम बना तो वो नगीन को भी साथ लेने आए। उसका कहीं आने जाने को जरा भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर अच्छी किताबों के लालच में चली आई और आना फायदामंद ही रहा। यहाँ खासा डिस्काउंट दिया जा रहा था तो उसने भी कुछ अच्छी किताबें खरीद ली। सारा और हैदर ने भी अपने टेस्ट के मुताबिक किताबें तलाश कर ली थी। अच्छा खासा टाइम गुजार कर वो लोग बाहर निकल आए। नगीन को अब घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन हैदर के इसरार, बल्कि पुरजोर इसरार पर एक जगह आइसक्रीम खाने के लिए रुकना पड़ा। वो दोनों बहन भाई उसे बहलाने की कोशिशों में मसरूफ थे। ये बात नगीन साफ महसूस कर रही थी और महज उन दोनों की खुशी की खातिर खुद को बेहद पुरसुकून जाहिर कर भी रही थी। भला एक शख्स की नालायकी की सजा दूसरों को क्यों दी जाए, और वो भी उनको जो आपसे बेलौस मोहब्बत करते हों। सारा को अपनी किसी दोस्त से मिलना था, पहले इसे वहां छोड़ा। नगीन उसके लिए बेहद इसरार पर भी वहां ना रुकी। प्लीज सारा, अम्मी की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। मैं अब इतनी देर से घर से निकली हुई हूँ। वो जरूर उठकर किसी न किसी काम में लग गई होंगी। इसका उज़र माकूल था, सारा को मानना पड़ा। अब हैदर को उसके घर पर छोड़ना था। फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठी वो मुस्तकिल उसकी बेतुकी बातें सुन रही थी। सारा भी बिल्कुल तुम पर गई है, खामोश होना ही नहीं जानती। फिक्र नहीं करो, हमारे घर आकर तुम भी हमारे जैसी ही हो जाओगी। नगीन के रमाक पर जरा सा भी एतराज किए बगैर वो खुश दिली से बोला।
ذرا امیجن کرو اس وقت ہمارے گھر کی رونق کا کیا عالم ہوگا جب میں، تم اور سارا تینوں ہی، معلوم نہیں وہ وقت کبھی آئے گا بھی یا نہیں۔ ایک دم ہی اس کے منہ سے نکل گیا۔ حیدر نے گاڑی کی رفتار تھوڑی ہلکی کر لی۔ نگین آج کل بے یقینی کے جس عالم میں تھی اسے وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا مگر چہرے کے تاثرات نظر نہیں آ سکے۔ وہ گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی اور اب دل میں اپنی کہی ہوئی بات پر سخت پچھتا رہی تھی۔ ایسا نہیں سوچتے نگین، امجد بھائی پر حماقت کا دورہ پڑا ہوا ہے، بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ وہ باہر دیکھے گئی۔ حیدر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ دل تو چاہ رہا تھا کہ پوچھ ہی لے کہ وہ کس بنا پر اتنے وثوق سے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تم دیکھنا انہیں اپنی اس غلطی پر کس قدر پچھتاوا ہوگا، اور وہ دیر ہو رہی ہے حیدر، گاڑی تیز چلاؤ۔ نگین نے بات کاٹی تو حیدر نے گہری سانس لے کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، لیکن امجد کی جانب سے صفائی پیش کرنے کا کام بہرحال اس نے جاری رکھا۔ نگین کو ناچار سننا پڑ رہا تھا، ابتدا کیونکہ خود اس کی جانب سے ہوئی تھی اور ماموں جان کے گھرانے کا ہر فرد ماسوا امجد کے آج کل خود پر اس کی دلجوئی کرنا فرض کیے ہوئے تھا۔ آگے سگنل پر ٹریفک بند تھا۔ اس کی مسلسل چپ سے حیدر کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس موضوع پر بات کرنے سے بچ رہی ہے، اس لیے ذرا دیر کے لیے وہ بھی خاموش ہوا۔ اخبار بیچنے والا لڑکا قریب آیا تو حیدر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نگین کا باہر دیکھنے کا شغل جاری تھا کہ ایک دم ہی گاڑیوں کے ہجوم میں سے ایک بائک نکال کر لاتا ہوا امجد اس کے بالکل قریب ہی رکا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ نہ دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نگین بھی بے ساختہ اسے دیکھی گئی، مگر وہاں کسی نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ایک چپتی ہوئی نظر اس پہ اور اخبار کی ہیڈ لائٹیں دیکھتے ہوئے حیدر پر ڈالتے ہوئے امجد کے لبوں پر ایک تمسکرانہ مسکراہٹ ابھری تھی، اور بس۔ نگین کے دل کو جیسے کچھ ہونے سا لگا۔ یہ مسکراہٹ اور نگاہ، وہ دونوں ہی کا مطلب خوب سمجھ رہی تھی۔ طنز، حقارت اور غیریت میں ڈوبی یہ نگاہ پکار کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا ڈراوا دے رہی تھی۔ امجد کا ذہن گھوم پھر کر بس یہیں تک پہنچتا تھا۔ یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی، اسے تو احمد اور اکمل جیسے بچوں سے اس کا فری ہونا نہیں بھاتا تھا۔ یہ تو حیدر تھا، نگین سے 2-2.5 سال بڑا، اور یہ کہ بھائی ہونے کے باوجود اس سے امجد کی کبھی زیادہ بنی بھی نہیں تھی۔ امجد اپنی بائک آگے نکال کر لے گیا۔ ٹریفک پھر سے رواں دواں تھا، لیکن وہ ابھی تک اسی نگاہ کے زیر اثر تھی۔ پہلے بھی کتنی بار امجد اسے باتیں سنا دیتا تھا اور وہ ہمیشہ ہی اس کی عادت سمجھ کر ٹال جاتی تھی۔ آج اتنا دکھ اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ محض پل بھر کی نظر نے توہین کا وہ احساس جگایا تھا جس سے وہ پہلے 2-4 نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی گھر کے آگے رکی تو وہ منتشر ذہن کے ساتھ اتر آئی۔ حیدر کو بھی جلدی تھی، نہ وہ رکا اور نہ ہی نگین نے رسمن بھی اسے اترنے کو کہا۔ کتابیں سنبھالتے ہوئے وہ اندر آئی تو سامنے ہی تخت پر شبانہ بھابی آئی بیٹھی تھیں۔ اس وقت کسی کو بھی اٹینڈ کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس بیٹھنا تو تھا، سو قریب بچھی کرسی پر جا بیٹھی۔ امی کو سارا اور حیدر کے بارے میں بتا کر وہ شبانہ بھابی کی طرف متوجہ ہو گئی جو اسے بہت دن سے نہ آنے کا شکوہ کر رہی تھی۔ وہ ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے انہیں مطمئن کرنے لگی۔ ادی کا بھی ٹرانسفر یہیں ہو گیا ہے، بس 2-4 دن میں آ جائے گا، وہ بتاتے ہوئے نگین کے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی تھی، مگر مایوسی ہوئی۔ بھلا وہاں کیا دھرا تھا؟ امی کسی کام سے اٹھیں تو شبانہ بھابی کو نیا قصہ یاد آیا۔ بہت خراب ہو تم، بتایا بھی نہیں کہ تمہاری شادی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے۔ بھائی ہمیں بھی تو تیاری کرنے کے لیے وقت چاہیے آخر۔ نگین بیوقوفوں کی طرح ان کا منہ تکنے لگی۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ آنٹی بتا رہی تھی کہ ماموں جان کو بہت جلدی ہے، وہ تو اسی ماہ کی تاریخ چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھو آج مہینے کی 4 تو ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں 24-25 دنوں میں سارا کام ہونا ہے۔ شبانہ بھابی کا تبصرہ ابھی اور جاری رہتا مگر نگین کے چہرے پہ پھیلی بے یقینی نے انہیں خاموش کر دیا۔ سچ مانے بھابی، مجھے تو ذرا بھی پتا نہیں، پھنسی سی آواز میں اس نے کہا۔ اس کے کانوں نے تو اڑتی بھی نہیں سنی تھی، کوئی اور نہیں تو سارا تو اتنی اہم بات بالکل بھی نہیں چھپا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے ابھی صرف بڑوں کے درمیان ہی مشورہ ہو رہا ہو۔ انہوں نے اسے اپنے طور پر تسلی دی اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر کھڑی جب وہ شبانہ بھابی کو خدا حافظ کہہ رہی تھی تو عین اسی وقت سجیلا اور اس کی امی سامنے سے جاتی نظر آئیں۔ بڑا سا شوپر تھامے شاید وہ لوگ ٹیلر کے ہاں سے آ رہی تھیں۔ سجیلا کی امی فیشن کے معاملے میں بیٹیوں کی شانہ بشانہ رہتی تھیں۔ اس وقت بھی ان کی اور سجیلا کی تیاری میں 19-20 کا ہی فرق تھا۔ ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر وہ ذرا فاصلے سے انجان بن کر گزر گئیں۔ سجیلا کے چہرے پہ ایک ہلکا سا تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا جو یقیناً نگین کی موجودگی کی بنا پر تھا۔ اس کی وہ مشہور عالم مسکراہٹ، خوش اخلاقی اور محبت کے دعوے جن کا مظاہرہ وہ نگین کے لیے کیا کرتی تھی، ان کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ کس دھڑے سے ماں بیٹیاں پھرتی ہیں، کوئی شرم لحاظ نہیں۔ شبانہ بھابی کے جملے پر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یقیناً وہ بھی اس سارے قصے سے واقف ہوں گی، اور وہی کیا امجد کو سجیلا کے گھر آتے جاتے نہ جانے کتنے واقف کاروں نے نوٹ کیا ہوگا۔ بیچارے شریف ماں باپ بیٹیوں کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو دیکھو ایک سے ایک اونچا ہاتھ مار رہی ہیں۔ ان کا غصہ بجا تھا۔ سجیلا کی 3 بڑی بہنیں اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت 3 بیوقوفوں کے گھر بسا چکی تھیں
اور اب چوتھی کے ٹیلنٹ کا امتحان تھا۔ نگین کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ سجیلا اور امجد کے تعلق کے بارے میں کچھ نہ کہہ بیٹھیں۔ بات سچ صحیح، پر اپنے کسی کمزور پہلو پر دوسرے کا تبصرہ سننے کے لیے حوصلہ چاہیے، جو فی الوقت نگین میں نہیں تھا۔ شبانہ بھابی کی مہربانی جو انہوں نے اس کا حوصلہ نہیں آزمایا، اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کے لیے رشتوں کی پریشانی کا چند منٹ ذکر کیا اور پھر خداحافظ کہہ کر چلی گئیں۔ وہ اندر آئیں تو امی اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ تاریخ والی بات سے اسے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ یہ یقیناً ماموں جان کی پیش بندی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ جانے کتنی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ امجد کی آنکھوں میں آج اپنے لیے جو کچھ وہ دیکھ آئی تھی وہ کافی سے زیادہ تھا۔ ہوائی قلعے بنانے کی اسے کبھی عادت نہیں رہی تھی اور فی الوقت اسے اپنا غم سنانے کے لیے ایک گوشہ تنہائی کی سخت ضرورت تھی۔ ایک تعلق جو اب تقریباً ٹوٹ چلا تھا دل کو دکھا رہا تھا۔ نگین اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک بڑے ہنگامے کے بعد جو خاموشی طاری ہوتی ہے وہی اس وقت سارے گھر میں چھائی ہوئی تھی۔ امجد ابھی اپنا بڑا سارا سوٹ کیس اٹھائے ہوئے یہاں سے چلا گیا تھا اور سوائے مومانی جان کے کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہی اب اس کی ناخلفی پر 4 آنسو بہانے کا فریضہ بھی انجام دے رہی تھیں۔ ماموں جان نے تھوڑی دیر تو اس ٹریجڈی سین کو بامشکل برداشت کیا، پھر وہ صبر نہ کر سکے تو بول ہی پڑے، ارے بند کرو یہ رونا دھونا، 4 دن میں جوتیاں چٹکا کر صاحبزادے تشریف لے آئیں گے، نکلے تو بہت زوم میں ہیں، اچھا ہے دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ مومانی جان پر ان کی تسلی نما تنبیہ کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ ان پر چھائی ہوئی رکت مزید بڑھ گئی۔ ماموں جان پر اپنی شکست کے باعث اکتاہٹ سوار تھی۔ امجد کے اس انتہائی قدم کی بہرحال انہیں امید نہیں تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے گھر کا ماحول کافی بہتر ہو چلا تھا۔ کچھ انہوں نے امجد کی طرف سے اپنا رویہ نرم کیا تھا اور جواباً وہ بھی سعادت مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ انہیں جو کچھ منوانا تھا اس کے لیے کم از کم پہلی ٹرائی محبت کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے، پر آج جب وہ اپنی دانس میں ٹھیک ٹھاک گراؤنڈ تیار کر کے بات شروع کر بیٹھے تو جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اپنی شادی کی بات چھڑتے ہی امجد جس بری طرح بھڑکا، اسے وہ سمجھ گئے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے، تو ساری مصلحت ایک طرف رکھ کر انہوں نے بھی جو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا وہ بھی کہہ ڈالا۔ امجد نگین کا نام بھی سننا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ جس رشتے کے لیے اس نے اپنی پوری آمادگی کا اظہار کیا تھا، آج اسے وہ اپنی حماقت گردان رہا تھا۔ اس کی سجیلا میں دلچسپی اب گھر والوں سے ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ گھر میں کئی بار اس ذکر پر زوروں کے مارکے ہو چکے تھے اور اس بات کے کھلنے پر امجد کا رہا سہا لحاظ بھی ختم ہوا تھا۔ اس وقت اس نے صاف صاف سارے گھر کو جتا دیا تھا کہ سوائے سجیلا کے اس گھر میں کوئی دوسری لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں آ سکتی ہے۔ بات یہیں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا، مگر اپنے انکار کے جواز میں اس نے جو نگین پر فرد جرم عائد کی وہ سبھی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ماموں جان تو ایک طرف، حیدر اور سارا بھی خاموش نہیں رہ سکے، اور بس حیدر کا بولنا غضب ڈھا گیا۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ ایسی ہی ہمدردی ہے تو تم کر لو نگین سے شادی، آج کل تو تمہاری اس سے انڈرسٹینڈنگ بھی خوب ہو رہی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بدگمانی کی حدوں کو پار کر رہا تھا۔ حیدر غریب تو ہکا بکا سا اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا، اور پھر جو ایک جھٹکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا تو اب تک باہر نہیں آیا تھا۔ کب ماموں جان نے امجد کو بوریا بستر سمیٹنے کا حکم دیا، کب امجد اپنا بیگ تیار کر کے وہاں سے روانہ ہوا، اس نے باہر نہیں جھانکا تھا۔ گھر سے نکلنے کے لیے کہنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو صدا کا ہی جذباتی ہے، بغیر سوچے سمجھے بولنے والا۔ مومانی جان غم کے پہلے جھٹکے سے باہر آتی جا رہی تھیں اور ان کی فطری محبت امجد کا دفاع کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماموں جان نے انہیں تیز نظروں سے دیکھا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی بیوی اس وقت صرف ایک ماں تھیں، اور ایک ماں یقیناً رعایت کی مستحق تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ جب وہ طیش میں امجد کو گھر چھوڑنے کا حکم سنا رہے تھے تو خود ان کے وہم و گمان میں بھی کہاں تھا کہ وہ سچ مچ ایسا کر گزرے گا۔ فرش پر بچھی دریاں اور ان کے اوپر بچھی چاندنیاں آتے جاتے خواتینوں حضرات کے جوتے تلے آ کر اب اتنی سمٹ چکی تھی کہ نیچے کا جا بجا ادھرا ہوا فرش صاف نظر آ رہا تھا۔ فرش پر جہاں سے وہاں تک بکھرے گلاب کے پھولوں کی پتیاں، فضا میں بسی مختلف قسم کی خوشبوؤں کا احساس، جن میں اب دیگ سے اترتے کھانوں کی خوشبو سب سے حاوی تھی۔ برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ، بچوں کا طوفان بدتمیزی، عورتوں اور بچوں کی ملی جلی آوازیں، اور ان سب کے درمیان چھوٹے سے کمرے میں وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ اس لکڑی کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کا سجیلا سے نکاح ہوا تھا۔ مبارک سلامت کا شور بھی امجد کے دل کو وہ خوشی نہیں بخش سکا تھا جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ گھر سے نکلے ہوئے اسے آج محض 3 دن تھا، اور اس مختصر سے عرصے میں سجیلا اور اس سے منسلک افراد خانہ اسے اچھی طرح یہ باور کرانے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ اب سارے مسائل کا حل اس کی اور سجیلا کی شادی ہو جانے میں ہی ہے۔ مثال کے طور پر وہ سجیلا کے دوسرے نمبر کے بہنوئی کو پیش کر رہے تھے، جسے بقول ان لوگوں کے کم و بیش انہی حالات میں گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ بس شادی کرنے کی دیر تھی کہ گھر والے اسی بہو کو سارے کروفر کے ساتھ سسرال لے گئے، جس کا وہ پہلے نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ گھر واپسی کا سہانا خواب امجد کی آنکھوں میں بھی بسا ہوا تھا، سو دانش مندی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ یہ تاریخ ساز فیصلہ کر بیٹھا تھا۔
हीर अमजद, हम तो अब चलें यार। कामरान के कहने पर वो माहौल से तवज्जो हटाकर उसकी तरफ देखने लगा। कामरान उसका सबसे गहरा दोस्त था और हक के दोस्ती संभालते हुए इस वक्त अपनी बीवी के साथ इस तकरीब में शरीक था। बकिया दोनों दोस्त जावेद और मुबीन अभी सिंगल थे। अभी से नहीं यार, ये सब खत्म तो हो ले, अमजद ने बेबसी से कहा। इस हंगामा बदतमीजी में उन लोगों की मौजूदगी तिनके का सहारा तो थी ही। कामरान ने बकिया दोनों बारातियों की तरफ देखा और पहलू बदल कर रह गया। अमजद को शर्मसारी सी होने लगी। अपने तीनों दोस्तों की उकताहट का सबब उसकी समझ में आ रहा था। पिछले चंद घंटों में यहाँ जहालत के जिस कदर मुजाहिरे हो चुके थे, इसके वो लोग आदी नहीं थे, और खुद उसने कब इस बेसरो सामानी के आलम में शादी रचाने का सोचा था। कामरान, अगर तुम अपने वालिद को साथ ले आते तो अच्छा होता। जावेद, जो निकाह के बाद से अब तक तकरीबन खामोश ही बैठा सारा तमाशा देख रहा था, कामरान से मुखातिब हुआ तो वो हड़बड़ा सा गया। तौबा करो यार, अब्बा को इस सारे कब्जे की भनक भी नहीं मिलनी चाहिए। कब्जे की? अब्बा को इस सारे किस्से की भनक भी नहीं मिलनी चाहिए, वरना तो खैर नहीं। उनकी अमजद के वाले से पुरानी दोस्ती है। नाजिया को भी मैं किसी कोलीग की शादी का बहाना करके साथ ले आया हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा था कि हाँ, मैं समझ गया हूँ। कामरान ने उसकी बात काटी। मगर अब क्या ही किया जा सकता था। निकाह के वक्त मेहर की भारी रकम रखवाते हुए सजीला के बहनोइयों ने जिस आसानी से अमजद की कमजोर मुजाहमत को बेअसर किया था, उसी वक्त से इन लोगों को किसी बुजुर्ग की अदम मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। यही नहीं बल्कि एक 10 नुकाती शराइतनामे पर भी अमजद से दस्तखत लिए गए थे। लड़की के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शादी के बाद तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं, किसी का क्या भरोसा। सजीला के बड़े बहनोई, जिनका नाम तो अल्लाह जाने क्या था, वहाँ मौजूद सारी खलकत उन्हें बब्बू भाई के लक़ब से पुकार रही थी। निकाह के वक्त वही अपनी साली के मफादात की हिफाजत के लिए मामूर थे। उनकी पेश करदा ओंगी बोंगी शराइत पर दस्तखत करते हुए अमजद को गुस्सा तो बहुत आया, मगर मरता क्या ना करता। ऐसा पक्का काम करवाया है कि अब दुल्हे मियाँ जिंदगी भर चू नहीं करेंगे। खुतबा निकाह के वक्त उनकी करारी आवाज फिर अमजद के कानों में गूंजी और अपना फखरिया कारनामा अब लोगों को सुनाकर दाद वसूल कर रहे थे। अब्बा होते तो इस बब्बू भाई के बच्चे को तो कम से कम ठीक करके रख देते। अमजद को अपने अब्बा शिद्दत से याद आए थे। हालांकि कामरान ने तो उनसे बहस करनी चाहिए भी कि शादीशुदा होने के नाते उन लोगों के ग्रुप में वही मोतबर था, लेकिन बब्बू भाई के आगे किसी की एक ना चली और वो अपने मैदान के शहसवार थे। एक तो कुदरत ने उनकी आवाज में वो क्वालिटी रखी थी कि आधी जंग वो इसी के बल पर जीत लेते थे। अब रुखसती में कितनी देर है तनवीर भाई? मुबीन ने सजीला के सबसे छोटे बहनोई को मुखातिब किया, जो इस सारे घराने में निस्बतन गनीमत था। अरे साहब, अभी तो मूवी बननी है, दुल्हा दुल्हन की सलामी देनी है, और आप लोग भी तो दुल्हन को कुछ मुंह दिखाई वगैरह देंगे ना। बब्बू भाई वहीं आसपास फिर रहे थे और कान मुस्तकिल इसी तरफ लगाए हुए थे, लिहाजा हर सवाल का जवाब देना उन्हीं का फर्ज ठहरा। अमजद का दिल चाहा कि मुंह खोलकर कह दे कि हमारे यहाँ दुल्हन की मुंह दिखाई ससुराल पहुंचकर की जाती है, लेकिन यहाँ फिलहाल ससुराल का जिक्र बेमहल था और वलीमा के आसार भी नहीं थे, इसीलिए खामोश बैठा दिल जलाता रहा। जरा देर बाद कामरान की बीवी नाजिया ने यह पजमर्दा भी आ सुनाया कि अमजद की तरफ से आए जोड़े और जेवर पर भी अंदर काफी एतराज किया गया है। मजीद टेंशन हुई, मगर अच्छी बात यह हुई कि अमजद की तबीयत पर छाई सारी कोफ्त और बेजारी है बस यहीं तक ही रही। जिस वक्त दुल्हन बनी सजीला को उसके बराबर लाकर बिठाया गया, जहन पर छाई सारी नागवार बातें एक एक करके रुखसत हो गईं। यहाँ तक के जरा देर को तो घर वालों से दूरी का एहसास भी जाता रहा। सजीला अच्छी तो वैसे भी लगा करती थी, मगर इस वक्त तो अमजद को जमाने भर से मुनफरिद नजर आ रही थी। उसे अपने इंतखाब पर फख्र महसूस होने लगा और पहली बार उसने अपने दोस्तों की तरफ शर्मसारी के हर ख्याल से आज़ाद होकर देखा। वो लोग भी खुश नजर आ रहे थे। अमजद के दिल में जो एक छोटी सी फांस थी वो भी चली गई। वो खुश था, बेहद और बेहिसाब। सजीला के वालिद तो बहुत पहले इंतकाल कर चुके थे और भाई तीनों बहनों से छोटा था, सो शादी का काम भी भाई ने अपने जिम्मे ले लिया था। अमजद को एक शाने बेनियाजी से 500 का नोट पकड़ाकर उन्होंने उसके तीनों दोस्तों की जानिब से सजीला को दिए गए हजार के नोट अपनी जेब में रखे। यूं ये तकरीब सईद बब्बू भाई को 2500 रुपये नफा पहुंचाकर इख्तिताम को पहुंची। अमजद की शादी एक दिन भी रात नहीं रह सकी, बावजूद इसके कि सजीला के घर वालों ने उसका एहतमाम अपने घर की बजाय अपनी बड़ी बेटी और दामाद के घर पर किया था। सारे मोहल्ले में सुबह ही से यह खबर गर्दिश करने लगी थी। सजीला के घर पर बहन बहनोइयों की गैर मामूली आमदोरफ्त ही सबके कान खड़े कर गई थी, और दूसरे वो लोग किसी किस्म की नेकनामी और बदनामी की परवाह नहीं करने वाले थे। इसी गैर मोहतात रवैये ने शाम तक इस खबर को कंफर्म कर दिया और रात गए तक लोग दूल्हे का नाम भी जान चुके थे। नगीन के घर वालों तक भी ये खबर पहुंची गई। पहले शबाना भाभी से मालूम हुआ, फिर अब्बा भी ईशा की नमाज के बाद अपने हल्का अहबाब में कहीं सुनाए। सितम ये कि बताने वाले ने उनसे अमजद का जिक्र भी कर डाला। मामू जान वगैरह ने इन लोगों से अभी तक अमजद के घर छोड़ने की खबर को पोशीदा रखा था। ख्याल यही था कि 2-4 दिन में या तो वो खुद आ जाएगा वरना उसे जाकर ले आया जाएगा। अब जो अब्बा का कहरो गजब में डूबा हुआ फोन वहां पहुंचा तो जैसे एक बिजली सी गिरी। बात इतनी संजीदा थी कि मामू जान
बात इतनी संजीदा थी कि मामू जान की किसी किस्म की वजाहत भी बाबा को ठंडा ना कर सकी। वो बेनुकत सुनाते रहे। मामू जान ने ला कहा कि वो खुद अभी कंफर्म करते हैं, मगर अब्बा को इस खबर की सच्चाई पर 100% यकीन आ चुका था और उनके ख्याल में अब करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। और उनका ये ख्याल कुछ ऐसा गलत भी नहीं था। अम्मी की तबीयत खराब होने का अंदेशा बढ़ रहा था। नगीन ने बामुश्किल इन्हें दवाई खिलाई। वो बेहद मुस्तरब थीं, आंखों से बहते पानी को बार बार दुपट्टे के पल्लू से साफ करती, मगर जरा देर में ही फिर ये अमल दोहराना पड़ जाता। नगीन को उन पर बहुत रहम आ रहा था। उन्हें दोहरी तकलीफ का सामना था। नगीन का रिश्ता कहीं गैरों में तय किया होता तो शायद ये हादसा इस कदर महसूस ना होता, मगर मामू जान में तो उनकी जैसे जान थी। अब जवाबन घंटे भर से उनके मेके की शान में कसीदे पड़ रहे थे। वो भी कुछ कम ना था। माँ बाप ने ही बिगाड़ रखा था, जमाने भर का लफंगा। अरे मेरी ऐसी औलाद होती तो मार मार के हशर कर देता, यूं सर पकड़ कर ना बैठ जाता। उनकी आवाज सारे घर में गूंज रही थी। अलगनी पर से धुले हुए कपड़े उतार कर लाती हुई नगीन ने सोचा कि वो आखिर ये सब किसे सुना रहे हैं। कहीं ये उनका हद से भरा हुआ रंज तो नहीं, जिसे गुस्से की शक्ल देखकर वो जाहिर करने की कोशिश में है। शायद ऐसा ही था, क्योंकि काफी बोल बाल कर जब वो अपनी मखसूस कुर्सी पर जा बैठे तो बड़ी देर तक गहरी खामोशी के हिसार में रहे। नगीन ने खाने का पूछा तो जरा देर बाद का कहकर फिर से अपने हिसार में बंद हो गए। अम्मी को जबरदस्ती दूध का एक कप पिलाकर उसने उन्हें लिटा दिया। वो दवाओं के जेर असर थीं, जल्द ही सो गईं। नगीन ने शुक्र अदा किया, उनके लिए यही बेहतर था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब्बा तो न जाने कितनी देर के प्रोग्राम से बैठे थे और उनके उठने तक वो अपने कमरे में बंद नहीं होना चाहती थी, सो यूं ही बेमकसद सी मसरूफियात में खड़ी रही, यहाँ तक के वो उठ ही गए। नगीन के बेहद इसरार पर भी उन्होंने खाना नहीं खाया, बल्कि दूध या चाय के लिए भी राजी नहीं हुए। भूख नहीं है बेटी, उनकी आवाज में नमी का एहसास घुल रहा था। नगीन ज्यादा इसरार भी नहीं कर पाई, खुद उसे भी कहाँ भूख थी। किचन में खाना वैसे का वैसे ही धरा था। उसने आहिस्तगी से डोंगों में से निकालकर फ्रिज में रख दिया। जब वो किचन बंद कर रही थी, अब्बा बाथरूम से निकलकर सहन में आ रहे थे। वो वजू करके निकले थे। नगीन के नजदीक आए तो जरा की जरा रुके और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, और आगे बढ़ गए। नगीन को लगा जैसे उसकी हिम्मत और बर्दाश्त की हद बस यहाँ तक ही थी। अब्बा अपने कमरे में दाखिल हो रहे थे। उनकी पुछ से लगकर सारे आंसू बहा देने की ख्वाहिश को उसने सख्ती से दिल में दबाया और अपने कमरे में चली आई। ये एक ऐसी जगह थी जहां उसे मुकम्मल इख्तियार था। सो पिछले कई घंटों से नॉर्मल नजर आने का जो ड्रामा वो कर रही थी, उसे एक तरफ करके वो दिल खोल कर रोई। ठुकराए जाने की जिल्लत का एहसास हर दूसरे एहसास पर हावी था। काफी देर बाद जब वो मुंह धोकर वापस आई तो यूं ही शीशे के सामने जा खड़ी हुई। खुद को गौर से शीशे में देखते हुए उसने सोचा, ये वही चेहरा तो है जिसे बतौर खास अमजद ने अपने लिए चुना था। वो इसे शुरू से पसंद करता आया था और इसी पसंदीदगी को उसने एक मोतबर रिश्ते की शक्ल भी दी थी। फिर अब ये क्या हुआ था? चेहरा तो बेशक वही था, मगर सराहने वाली निगाह खो गई थी। बाहर अब्बा के कमरे की लाइट जल रही थी। वो इस खाल के कायनात से सब्र और हौसले के तलबगार थे जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है। मामू जान अगले दिन सुबह ही आ पहुंचे। हालांकि बेचारे खुद को किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं पा रहे थे, मगर दर हकीकत उन्हें अपनी बहन की फिक्र थी, इसलिए रुक ना सके। दोनों बहन भाई ने अपना गम किस तरह शेयर किया, नगीन ने जानने की जरा भी कोशिश नहीं की। तवील रात के बाद वो फिर से बेनियाजी का चोला पहन चुकी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब्बा ने अब किसी रिएक्शन से एतराज ही किया। जो होना था हो चुका था। मामू जान ने रात गए तक पता चलाने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हो सके थे। अमजद के तीनों दोस्त अपने घरों पर दस्तयाब नहीं थे, या शायद उन्होंने उसके सामने आने से एतराज किया था। हैदर खामोशी से नगीन की गली का भी चक्कर लगा गया था, मगर सजीला के घर पर ताला लगा हुआ था। वो लोग सब बड़ी बेटी के घर पर ही थे। बहरहाल अब्बा तक पहुंचने वाली इतला मफरूजा ना थी, और अब तो सारी गली उसकी गवाह थी। अब जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगा भाई साहब, समझ लूंगा मेरा एक ही बेटा है, वो गुलूगीर आवाज में कहते रहे। अब्बा ने रस्मी सी भी तसल्ली देने की जरूरत नहीं समझी। जानते थे कि ऐसे दामों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, यूं ही कठोर से बने बैठे रहे। मामू जान थोड़ी देर बैठ के चले गए। उनके आ जाने का एक फायदा तो हुआ कि अम्मी का भी दिल हल्का हो गया। रंज अपनी जगह, पर अब वो कल रात की तरह बेकरार नहीं थी। मुहल्ले में सभी को अमजद और नगीन की मंगनी का इल्म था, बल्कि इल्म क्या, अक्सर तो इस तकरीब में शरीक हुए थे, लेकिन किसी ने भी फौरी तौर पर उनके घर पहुंचकर अफसोस करने की हिम्मत नहीं की। पहली वजह तो ये है कि नगीन के घराने को वहां बेहद इज्जत की निगाह से देखा जाता था, और दूसरे पास पड़ोस में रहने वाले भी मिजाजन नेक थे। ऐसे मौके पर इजहार अफसोस की आड़ में कीचड़ उछालने का जो कारनामा अंजाम दिया जाता है, उसका रिवाज वहां कम ही था। और तो और शबाना भाभी भी 1-1.5 दिन गुजार कर आई। अफसोस तो उन्हें भी था, मगर दूर अंदर कहीं एक इत्मीनान भी छुपा हुआ था। अदी का आना आज कल पर टल रहा था। उसे उन्होंने
उसे उन्होंने ज़रूर ये खबर सुना दी थी। अम्मी ने उसे फ़ोन करवाया था यहाँ ताकीद करने के लिए कि वो शबाना के मामू की बेटी को ज़रूर देखता हुआ आए। उसका पहले ही इरादा नहीं था। इस इत्मीनान बख्श इत्तला ने मज़ीद रिलैक्स कर दिया। होटल के स्वीट में गुजरे 3 दिन बिलाशुबा इन दोनों की ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। ज़माने भर से कटकर ढेर सारी लग्जरीज के साथ वक्त गुजारना एक ज़बरदस्त तजर्बा रहा। अमजद के दिल में जो ढेर सारे रुपए खर्च करने का मलाल था, सजीला की गुर्बत ने उसका फ़िलहाल निशान तक मिटा दिया था। दरअसल वो होटल पर पैसे खर्च करने की बजाय कहीं छोटा मोटा फ्लैट या कम अज़ कम एक कमरा ही किराए पर लेने के हक़ में था। लेकिन सजीला और उसके घर वालों ने उसके आइडिया को सुनते ही फ्लॉप करार दे दिया था। इन लोगों का ख्याल था कि जब चंद दिन बाद अमजद को अपने घर ही जाना है तो फिर यह घरदारी का झमेला पालने की ज़रूरत ही क्या है। चंद दिनों की रिहाइश के लिए बब्बू भाई ने बड़े खलूस से अपने घर की पेशकश की थी, जिसे अमजद को कबूल करना पड़ा। कोई और चॉइस थी भी नहीं। दोस्तों को वो मजीद किसी आजमाइश में डालना नहीं चाहता था कि वो तीनों ही ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स थे। माली मदद इन तीनों ने अपनी हैसियत से बढ़कर कर दी थी। उसके अकाउंट में भी रकम थी, लिहाजा निज़ाम में सिक्का वाली एक दिन की बादशाहत की मानिंद उसका भी ये वक्त गुजर गया और अब उसके आगे की सिचुएशन इतनी ग्लैमरस हरगिज नहीं थी। लो भाई, खैर से बुद्धू घर को आए। इन दोनों की अपने घर आमद पर यह खैर मकदमी जुमला बब्बू भाई की तरफ से आया तो अमजद को सख्त बुरा लगा। ना तो यह घर उसका था और ना ही अपनी अक्ल और दानिश पर उसे किसी किस्म का शुबा था, मगर क्योंकि अभी कुछ दिन उन्हीं के साथ गुजारने थे इसलिए जब्त करके रह गया। बब्बू भाई के घर में 3 कमरे थे, एक ड्राइंग रूम, एक उनका बेडरूम और दूसरा उनके 3 अदद बच्चों का बेडरूम, जो फिलहाल अमजद और सजीला के हिस्से में आया था। कमरे की हालत खासी अबतर थी। अमीना आपा यानी बब्बू भाई की अहलिया मोहतरमा को इसी वक्त उसकी सफाई का ख्याल आया जब वो लोग वहां पहुंच चुके थे। अमजद को काफ़ी देर ड्राइंग रूम में बैठना पड़ गया और जब कमरे के मालकाना हकूक हासिल हुए तो थोड़ी देर में ही अंदाज़ा हो गया कि अमीना आपा ने नाहक कितना वक्त ज़ाया किया। महज जा बजा फैले कपड़ों, किताबों और खिलौनों को मंजर आम से हटाने की नाकाम कोशिश की गई थी और वो अभी भी अलमारी के ऊपर, बेड के नीचे और पर्दों के पीछे से झांक रहे थे। खैर, जो भी था गनीमत था। वो भी शुक्र करके बेड पे जा लेटा। सजीला अमीना आपा के पास जा बैठी। उसकी दूसरी शादीशुदा बहन और माँ भाई वापिस अपने अपने घर जा चुके थे। दोनों के पास एक दूसरे को सुनाने के लिए बहुत कुछ था। अमीना आपा की पिछले 3 दिनों की रौदात गैर दिलचस्प थी, सवाए रिश्तेदारों की नुक्ताचीनी, अखराजात की तफसील और अमजद के घर वालों के मुतल्लिक खदशात के इजहार कि उनके पास क्या धरा था। सजीला जल्दी बोर हो गई। फिर जो उनकी बात काटकर अपनी होटल यात्रा का किस्सा शुरू किया तो बात लंबी होती चली गई। इधर अमजद, जो इस ख्याल के तहत कमरे में जा लेटा था कि कुछ देर आराम कर लेगा, एक मुस्तकिल डिस्टर्बेंस का शिकार रहा। बब्बू भाई के तीनों बेटे शायद इस बेजबरी बेदखली की वजह से उसका सुकून और आराम तबाह करने का तहैया किए बैठे थे। खालू, फलां चीज़ लेनी है, जहाज से सुई तक उन्हें इसी कमरे से बरामद करनी थी, सो वो हर मिनट पर वहीं आ मौजूद होते और उसके बाद उनका जंगलीपन काबिल दीद होता। अमजद जल्द ही उकता गया। अलमारी में लगे शीशे में से उसने खुद पर एक निगाह डाली और कामरान के यहाँ जाने के लिए बाहर निकल आया। सजीला के अलावा बब्बू भाई, उनके तीनों बच्चों और अमीना आपा को फर्दन फर्दन कहाँ जा रहे हैं और कब आएंगे का जवाब देना पड़ा। बाहर निकलकर उसने सोचा कि कहीं करीब से कामरान को फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करके वो किसी नज़दीकी रेस्टोरेंट में बुला ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो यही किया। कामरान घर पर ही था और जल्द ही मुकर्ररा जगह पर आ पहुंचा। शादी के बाद से अमजद का दोस्तों से राब्ता मुनक़ता था और ऐसा इन लोगों ने पहले से ही तय कर रखा था। अमजद को ज़्यादा फिक्र अपने घर की थी। वहाँ की सही रिपोर्ट कामरान से ही मिल सकती थी। उसका ख्याल था कि इस शादी की खबर अभी वहाँ तक नहीं पहुँची होगी, मगर ये सिर्फ उसकी खामख्याली थी। अंकल को तो उसी रात खबर हो गई थी। कामरान ने बिला किसी तमहीद के बात शुरू कर दी थी। बिला मुबालगा इसी रात उनके दर्जन भर फ़ोन तो आए होंगे। हैदर भी आया, मगर बस में सामने ही नहीं गया। अगले दिन सुबह को वो खुद आ गए। गेट मैंने ही खोला था। जाहिर है कि फिर क्या कर सकता था। इतनी खुदसरी दिखा देने के बावजूद भी अमजद का दिल नॉर्मल रफ्तार से तेज धड़कने लगा। उसकी सवालिया निगाहें बदस्तूर कामरान के चेहरे पर मरकूज थीं। बस यार, मैं तो शर्म से गड़ गया। पता है, उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि कामरान, मैंने अमजद के बारे में जो खबर सुनी है वो सही है ना? अब बताओ, मैं कैसे झूठ बोल सकता था? कह देते मुझे नहीं मालूम, मेरी अमजद से मुलाकात ही नहीं हुई। तुम्हें समझाया भी, कैसे कह देता? कमाल करते हो। कामरान ने तेजी से बात काटी। वो इतने रंजीदा और थके थके लग रहे थे जैसे सारी रात आंखों में काटी हो। मुझे तो अब अफसोस हो रहा है कि हम लोगों को इस बेवकूफ़ी में तुम्हारा साथ देना ही नहीं चाहिए था। कामरान ने साफ साफ कह दिया। इस रोज से मामू जान की हालत देखकर वो वाकई शर्मिंदा था। और वो तुम्हारी ससुराल भी तो तुम्हारी फूफी की गली में वाक़या है, वहीं से आधे शहर को तो इतला हो गई थी। अमजद को मानना पड़ा, ऐसा यकीनन हुआ होगा।
इस शादी को चंद दिन राज में रखने की ख्वाहिश की तकमील नामुमकिन थी। सजीला के घर वाले एक नंबर के ढिंढोरची थे, और दूसरे ये कि जिस इमरजेंसी में ये काम हुआ था वहाँ बहुत से पहलुओं पर सोचने की जहमत ही नहीं की गई थी। मेरी मानो तो अब सीधे घर जाकर उनसे माफ़ी मांग लो, माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। कामरान का मशवरा साहिब था, लेकिन अमजद उनका इतनी जल्दी सामना करने के लिए तैयार नहीं था। चंद मजीद दिन गुजर जाएंगे तो उनका गुस्सा यकीनन ठंडा हो जाएगा। इसी ख्याल के तहत वो कुछ और टाइम गुजार देना चाहता था। सजीला को पाकर वो इतना खुश था कि कोई भी फिक्र या परेशानी वाली बात ज्यादा देर तक जहन में ठहर ही नहीं पाती थी। इस वक्त भी तफ्शीशनाक मुमकिनात को खैर बात कहकर वो सजीला की तारीफ में मसरूफ हो गया। समझदार, मोहब्बत करने वाली, सलीकामंद वगैरह वगैरह। इन 3.5 दिनों में ही वो इसकी बहुत सारी खूबियों से आगाह हो चुका था, लेकिन कामरान ने मदह सराई के सिलसिले को शायद पसंद नहीं किया था, इसीलिए वो जल्द ही माजरत करके उठ गया। अमजद को थोड़ी सी कोफ्त तो हुई, मगर खैर, सजीला जैसी साथी के मुयस्सर आ जाने के बाद दोस्तों की कंपनी की उसे कोई खास जरूरत भी नहीं रही थी। वो वापस घर की जानिब चल पड़ा, जहां उसे अभी बब्बू भाई और उनकी आल औलाद के साथ मालूम नहीं कितने दिन और रातें गुजारनी थी। अदी को यकीन था कि खुदा का उस पर खास करम हुआ है, और अब इस चांस को मिस करने की गलती उसे नहीं करनी थी। सो फौरन ही आ पहुंचा था। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, और घर वाले उसकी खुशी को वापस ट्रांसफर से मंसूब कर रहे थे। असल वजह से सिर्फ शबाना भाभी वाकिफ थीं और उसकी खुशी में बराबर की शरीक थीं। अम्मी को मलाल था कि उसने उनकी पसंद की हुई लड़की को देखने में सुस्ती की, बल्कि रद्द ही कर दी। अब उन्हें नए सिरे से सारे हल्का अहबाब पर नजर दौड़ानी पड़ रही थी। जिस दिन बहनें आ जाती वो भी शरीक हो जाती, वरना मुशावरत के लिए शबाना भाभी तो थी ही। अदी का ख्याल था कि अब इन लोगों को नगीन के घर रिश्ता ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए, मगर शबाना भाभी इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं थी। उनका ख्याल था कि कुछ वक्त गुजरने देना चाहिए। अभी नगीन के घर वाले वो खुद एक जज्बाती कैफियत से गुजर रहे हैं। ऐसे में उन्हें नॉर्मल होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। अमजद की शादी को बामुश्किल 8-10 दिन गुजरे थे। असल वक्त तो यही है भाभी। सेशन एक्सपायर्ड प्लीज। अदी का ख्याल था कि अब इन लोगों को नगीन के घर रिश्ता ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए, मगर शबाना भाभी इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं थी। उनका ख्याल था कि कुछ वक्त गुजरने देना चाहिए। अभी नगीन के घर वाले और वो खुद एक जज्बाती कैफियत से गुजर रहे हैं। ऐसे में उन्हें नॉर्मल होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। अमजद की शादी को बामुश्किल 8-10 दिन गुजरे थे। असल वक्त तो यही है भाभी। इस वक्त तो वो मुतबादिल के तौर पर फौरन ही रिश्ता कबूल करेंगे, वरना बाद में तो हो सकता है कि मुझमें उन्हें 10 खराबियां नजर आ जाएं। अदी की अपनी मंतक थी। दरअसल उसके दिल में ये भी डर था कि कहीं नगीन के वालिदैन किसी और को मुंतखब न कर लें। शबाना भाभी बहुत इत्मीनान से उसके हर एतराज़ को रद्द करती रहीं। उसके बहुत जोर देने पर भी वो इस हद तक राजी हुई कि पहले वो नगीन से बात करेंगी। उसका रवैया अगर हौसला अफजा हुआ तो फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। अदी को नगीन के बारे में कोई खुशफहमी तो खैर नहीं थी, पर शबाना भाभी की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन देखिए, बात इस तरीके से कीजिएगा कि उसे माने बगैर। मालूम है। उन्होंने हाथ उठाकर उसकी बात काटी और उठ खड़ी हुई। उनके मियाँ के आने का वक्त हो रहा था। आज उनके साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था। नगीन के साथ मीटिंग कल पर उठा रखी थी। फिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। हालांकि अपने तौर पर तो उन्होंने उससे बात करने की काफ़ी तैयारी की थी। अदी की तारीफ में मुबालगा आराई तक कर गईं, लेकिन नतीजा अभी कुछ सोचने को दिल ही नहीं चाहता भाभी। नगीन ने चंद लम्हे उन्हें हैरत से देखा, फिर सर झुकाते हुए बोली। शबाना भाभी उसकी कैफियत को समझ रही थीं और इसीलिए उन्होंने अदी की मुखालफत की थी, मगर अब चूंकि उससे वादा करके आई थीं इसलिए पूरी तरह वफादारी निभानी थी। मैं समझती हूँ, मगर ये तो सोचो कि अंकल और आंटी किस कदर फिक्रमंद हैं। उनकी खुशी तो अब इसी में होगी कि उन्होंने बात अधूरी छोड़कर उसका रिएक्शन जांचना चाहा। वो उन्हीं की जानिब देख रही थी। चेहरे पर सुकून छाया हुआ था, लेकिन आंखों में हल्की सी उदासी की तह महसूस की जा सकती थी। उन्हें भी समझना पड़ेगा। मालूम नहीं हर मसले का हल इसी नुस्खे को क्यों समझ लिया गया है। जिंदगी को ढंग से गुजारने के लिए कुछ और भी सोचा जा सकता है। वो लहजे में आई हल्की सी तलखी को छुपा नहीं पाई। उसका ये रिएक्शन शबाना भाभी के लिए गैर मुतवक्का नहीं था। उसकी उकताहट, बेयकीनी, उदासी समझ में आती थी, और अच्छा ये था कि वो इस फेज से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए। तो किसी माहिर नफ्सियात की माने तो उसके मुस्तकबिल के आरादों से आगाह होने के लिए दाव पेच लड़ाने लगी, मगर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नगीन की शख्सियत की तरह उसके अज़ाइम में भी कोई उलझाव नहीं था। सीधा सादा शफाफ रास्ता।
ابھی سب سے پہلے تو مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے. اگلے مہینے سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن شروع ہو رہے ہیں. خواہ مخواہ ہی 1 سال ضائع ہوا. اس کے ماسٹرز کرنے کی خواہش میں امجد ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا. نگین کا یونیورسٹی جانا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا اور بہت سی دوسری باتوں کی طرح اس نے امجد کے اس نامعقول حکم کو بھی مان لیا تھا. حتیٰ کہ امجد کے منع کرنے پر پرائیویٹ طور پر بھی فارم نہیں بھرا تھا. مگر اب اپنی زندگی کے کچھ فیصلے وہ آزادی سے کرنا چاہتی تھی. رات میں اس نے ابا سے بھی اجازت لے لی تھی جو انہوں نے بخوشی دی تھی. شبانہ بھابھی کو اس کا یہ پورے اعتماد رویہ اچھا لگا مگر انہیں عدی کا بھی سوچنا تھا. امی اس کی شادی کے لیے بے چین تھیں اور یہ 2-3 سال کا عرصہ جو نگین کا عائد کردہ تھا بہرحال کم نہیں تھا. کھونٹی پر ٹنگے کپڑوں کے انبار میں سے اس نے اپنے کپڑے تلاش کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی اور حسب سابق مایوسی ہوئی. صبح سویرے کی یہ مشقت روزانہ ہی کافی وقت لے لیتی تھی. سجیلا روز ہی اس کے کپڑے اوپر لٹکانا بھول جاتی تھی. ببو بھائی کے ہاں لوگوں کی آمد و رفت رات گئے تک جاری رہتی. ان میں سجیلا کی اماں، بھائی، دوسری بہن بہنوئی کے علاوہ اور بہت سے ملنے والے ہوتے تھے. امجد ان لوگوں کے حلقہ احباب کی وسعت پر حیران بھی تھا اور اب پریشان بھی. یہاں آنے والوں میں سبھی دنیا بھر سے فارغ لوگ تھے کیونکہ شام ڈھلے جو محفل جمتی تھی وہ 12:01 سے پہلے برخاست نہیں ہوتی تھی. امجد تو پھر بھی کسی وقت معذرت کر کے اٹھ جاتا تھا مگر سجیلا ٹس سے مس نہ ہوتی. سجیلا تھک ہار کر اس نے آواز دی. دوسری یا تیسری آواز میں وہ آ ہی گئی. ہاتھ میں تھامی ٹرے میں پراٹھے اور آملیٹ گھی میں تربتر تھے ہی. چائے پر بالائی کی تہ بھی خاصی موٹی تھی اور امجد کو اس کے سخت میٹھی ہونے کے بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا. وہ اس طرز کے ناشتے کا عادی نہیں تھا. ان کے ہاں پراٹھے کا اہتمام محض چھٹی کے دن کیا جاتا تھا. وہ بھی امی اور سارا بہت ہلکے گھی کے ساتھ بناتی تھیں. یہاں 2-4 تو اس نے برداشت کیا مگر اب اپنے لیے ڈبل روٹی لا کر رکھنے لگا تھا. سجیلا کو شرٹ ڈھونڈنے کا کام سپرد کر کے وہ خود ناشتہ کرنے بیٹھ گیا. چھوٹی سی میز سامنے رکھ کر ناشتہ اور کھانے کے لیے اسے جگہ بنانی آ گئی تھی. چائے کے ساتھ سلائس لیتے وہ بہت بدمزہ سا ہو رہا تھا. کتنی بار تم سے کہا ہے کم از کم ایک انڈا ہی بوائل کر دیا کرو. اس ناشتے میں کیا برائی ہے؟ سجیلا کو فوراً برا لگا. امینا آپا اتنی محنت سے بناتی ہیں بیچاری. بچوں والا گھر ہے. اب تمہارے لیے ایک انڈا تو بوائل نہیں ہو سکتا. یہاں جو سب کے لیے پکے گا وہی کھانا پڑے گا. کیوں کھانا پڑے گا؟ مفت میں تو نہیں کھا رہے. 4000 روپے دیے ہیں ببو بھائی کو. امجد نے یاد دلایا. ببو بھائی نے پہلی تاریخ کے آتے ہی امجد سے کھانے کے 4000 خود اور سجیلا کے ہاتھ خرچ کے 5000 سجیلا سے وصول کروا لیے تھے. یوں اس کے پاس صرف 500 روپے بچے تھے جس کا اسے بے حد قلق تھا. پیسوں کا جتانا سجیلا کا موڈ اور زیادہ خراب کر گیا. وہ اپنی بہنوئی کے احسانات جتانے لگی جو وہ ان دونوں پر اِساڑے وقت میں کر رہے تھے. امجد کو خاموش ہونا پڑا. اپنے گھر واپس ہونے کی وہ ابھی تک کوئی سبیل نہیں کر پایا تھا. دوستوں کے ذریعے جو اطلاعات ملی تھیں ان کے مطابق تو وہاں اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کیا جا رہا تھا. ایسے میں وہ کس منہ سے سجیلا کو وہاں لے کر جا سکتا تھا؟ اچھا مجھے کچھ پیسے دو، میرے پاس بالکل ختم ہو گئے ہیں. وہ کپڑے اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے بولا. واپس آیا تو سجیلا ابھی ناشتے میں ہی جتی ہوئی تھی. آدھی انگلیاں اور ہونٹ بالکل چکنے ہو رہے تھے اور تیوری پر پڑا ہلکا سا بل اعلان کر رہا تھا کہ ابھی تک اس کا منہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. بڑے بڑے نوالے منہ میں ڈالتی سجیلا اس روز ہوٹل میں ڈنر کرتی سجیلا سے بہت مختلف لگ رہی تھی. سارا رکھ رکھاؤ وہ بہت جلد بھولتی جا رہی تھی. حتیٰ کہ وہ دل نواز مسکراہٹ بھی اب کبھی کبھی ہی جھلک دکھاتی تھی. سنا نہیں تم نے؟ میں پیسے مانگ رہا ہوں. اس کی بے نیازی پر وہ بے حد چڑ کر بولا تھا. کیسے پیسے؟ میرے پاس سے خرچ ہو گئے ہیں سب. 10 دن میں تم نے پورے 5000 خرچ کر ڈالے. 5000 تھے، 5 لاکھ نہیں جو یوں چلا رہے ہو. اور ویسے بھی وہ میرے پیسے تھے، جیسے بھی خرچ کروں میری مرضی. وہ ٹرے اٹھا کر پیر پٹکتی باہر چلی گئی. اس کی اس ڈٹائی پر وہ کھول کر رہ گیا مگر پرائے گھر میں تماشا بننا اسے منظور نہیں تھا. سو ضبط کر کے رہ گیا. ببو بھائی کے شرائط نامے پر بے سوچے سمجھے دستخط کرنے پر خود کو لعنت ملامت کرتا وہ باہر نکلا تو سامنے ہی ان کی مسکراتی ہوئی شکل نظر آئی. اندر ہونے والی کھٹ پٹ کی تفصیل کچھ وہ اپنی کان لگا کے سننے کی عادت کی بدولت اور کچھ سجیلا کی زبانی سن چکے تھے. امجد انہیں نظر انداز کرتا ہوا گیٹ سے نکلنے لگا تو وہ تیزی سے لپکے. یار امجد ذرا مجھے بھی کام ہے. یہ ان کا روز کا معمول تھا. وہ امجد کے ساتھ ہی نکلتے اور اپنی مطلوبہ جگہ اترتے. خواہ وہ جگہ امجد کے آفس سے کتنی ہی مخالف سمت میں ہوتی اسے یہ مفت کی سواری ڈھونی ہی پڑتی تھی. آج اس کا موڈ زیادہ خراب تھا اس لیے رخائی سے بولا. مجھے دیر ہو رہی ہے ببو بھائی، آپ اپنی بائک پر چلے جائیں. ارے کوئی دیر ویر نہیں، بس 10 منٹ کا تو فرق پڑے گا. یہ میرا کٹارا تو ویسے ہی خراب ہو رہا ہے. انہوں نے بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی ریزرو ہونے کی کوشش کو ناکام بنایا اور پیچھے براجمان ہو گئے. خون کے گھونٹ پی کر اس بھاری بھرکم فرض کی ادائیگی کے لیے اسے جانا ہی پڑا. مگر کچھ ایسا تھا جو پچھلے کئی دن سے اسے کچھ غلط ہو جانے کا احساس دلا رہا تھا.
दोस्तों से मजीद उधार लेते हुए उसे शर्म आती थी, पर लेना ही पड़ रहा था। वो मुस्तकिल खाली हाथ रहने लगा था। वालिदैन के घर मुफ्त आमो क़याम की सहूलत की बदौलत वो अपनी तनख्वाह को बेहद माकूल समझता था, और वो थी भी, पर अब उसे सोचना पड़ रहा था अकाउंट में जो अच्छी खासी रकम थी वो शादी के कपड़े, जेवरात और दीगर लवाजमात पर खर्च हो चुकी थी। होटल का बिल भी कुछ उसमें से और कुछ दोस्तों की मदद से चुकाया गया था। बैंक में अब बस 500 रुपए बाकी रह गए थे। अमजद, मेरे ख्याल में तो तुम्हें किसी भी तरह घर वालों को मनाना चाहिए, वरना अगले चंद महीने में तो तुम्हारे हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। कामरान की बात से उसे 100% इत्तफाक था। ऑफिस के बाद वो दोनों फारिग थे। कुछ समझ में नहीं आता यार, तुमने कोशिश की तो थी, नाकाम हुए ना। वो उसे बेबसी के साथ देखते हुए बोला। मेरी बात और थी, तुम खुद जाओगे तो अंकल नरम पड़ जाएंगे, मुझे यकीन है। अब्बा बहुत जिद्दी हैं, एक बार कोई बात उनके जहन में जम जाए तो वो बहुत मुश्किल है इसे निकालना। दरअसल गलती मुझसे हुई है, मुझे इस तरह घर वालों से अलग होकर शादी करनी नहीं चाहिए थी। क्या खबर वो सब राजी हो ही जाते। सिर्फ 1.5 माह में ही उसे पछतावे घेरने लगे थे। बब्बू भाई ने फौरी शादी के नतीजे में जो रोशन मुमकिनात का ख्वाब दिखाया था, उनमें से कोई भी सामने नहीं आ सका था। कामरान के हौसला बढ़ाने पर वो घर वालों से ताल्लुकात की बहाली के तरीकों पर गौर करने लगा। एकदम ही बहुत दिन बाद नगीन की याद आई। अब्बा उसे बेहद चाहते हैं और कोई बात रद्द नहीं किया करते। अगर नगीन उसकी सिफारिश कर दे तो शायद, पर नगीन का सामना करने के लिए भी तो हिम्मत की जरूरत थी। उसके लिए दिल में मुखालफाना जज्बात में अब वो शिद्दत बाकी नहीं रही थी। उसकी जगह हल्की सी शर्मिंदगी सर उठाने लगी थी। इतने दिनों से किसी की कुछ खबर ही नहीं थी। उसे एकदम ही अपना आप बहुत अकेला अकेला सा महसूस होने लगा। उसी बुझे बुझे से मूड में वो घर में दाखिल हुआ था। वहां हस्बे मामूल महफिल आराई अरूज पर थी। सामने वाले कमरे को, जिसे ड्राइंग रूम का नाम दिया हुआ था, 3-4 लड़के, बमा, बब्बू भाई और अमीना आपा मौजूद थे, और चाय सर्व करने वाली सजीला थी। कहकहों की आवाज बाहर तक आ रही थी और फिजा में किसी सस्ते से परफ्यूम की महक महसूस की जा सकती थी। अमजद अंदर दाखिल हुआ तो जरा की जरा खामोशी छाई। लो भाई, अब होशियार होकर बैठो, सजीला के मियाँ तशरीफ ले आए हैं। बब्बू भाई ने गालबन अमजद के रिजर्व रहने की आदत पर तंज किया था, जिस पर एक फरमाइशी कहकहा बुलंद हुआ। नुमाया आवाज सजीला की भी थी। यहाँ इस महफिल में वो बेदरेग मुस्कुराहट का खजाना लुटा रही थी। अमजद को बब्बू भाई के इस मजाक पर मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी तवज्जो इन 4 लड़कों की तरफ थी, जिनसे वो पहले भी कई बार यहाँ मिल चुका था। शुरू में जब वो उनसे मुतारिफ हुआ था, तब ही वो लोग इसे पसंद नहीं आए थे। लोफराना अंदाज और घटिया मजाक तक उनकी रसाई थी। किसी न किसी रिश्ते से वो सजीला वगैरह के खालाजाद या मामूजाद कुछ होते थे। इस वक्त तो उसे गुस्से में कुछ याद ही नहीं आ रहा था। कभी हमारे पास भी बैठ जाया करें अमजद साहब। उनमें से एक ने अपने आप को कदर माकूल साबित करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे वो कमाल बदतमीजी से नजरअंदाज करता हुआ सजीला से मुखातिब हुआ। जरा अंदर आकर मेरी बात सुनो। इतना कहकर वो तेज कदमों से अपने कमरे में चला गया। वो सारे के सारे जो यहाँ मौजूद थे जरा देर को तो सटपटाए, मगर फिर कहे लगाने लगे। इन लोगों के खमीर में शर्मिंदा होने का जुज़ शामिल नहीं था। सिर्फ सजीला ही झिंपी सी थी, वो भी अपने मियाँ के मिसबिहेवियर की बिना पर। उसके पीछे जाने की बजाय वो वहीं बैठी रही। अंदर अमजद पेचोताब खा रहा होगा, इसे मालूम था, मगर परवाह नहीं थी। आज मौसम अबरालूद था, बादल गहरे थे, इसीलिए अंधेरा जल्दी ही फैलता जा रहा था। बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी। पर बब्बू भाई के मेहमान उसी इत्मीनान से बैठे हुए थे। इनमें से 2 रात के खाने के लिए कुछ लेने के लिए जरूर उठकर गए थे। यहाँ खाने पीने चुगल इसी तरह चलता था। अमीना आपा ने गुड्डू के हाथ अमजद को चाय का कप भेजा था, जो उसने वापस कर दिया था, इस आस पर कि शायद सजीला खुदाकर उसे मनाए, मगर ख्वाहिश ही रही। सजीला का रवैया बहुत तेजी से बदला था। अमजद को इन रंग बिरंगे मेहमानों में उसका बैठना खलता था, इसलिए शुरू में ही साफ लफ्जों में मना किया था, मगर सजीला ने इस बात को याद रखने के काबिल समझा ही नहीं था। और उधर नगीन थी, जो उसकी बेसरोपा बातें न सिर्फ सुन लेती थी, बल्कि एडजस्ट करने की इंतहाई कोशिश करती थी। वो बहुत गैर जानिबदारी से तजिया करता रहा। हालांकि अब इसका कोई फायदा नहीं था। बाहर बारिश तेज हो गई थी। पानी की बौछार उसे ख्यालों से बाहर निकाल लाई। किचन से बर्तनों के खनकने की आवाज सुनाई दे रही थी। गैर मामूली चहल पहल जारी थी। सजीला ने अब तक यहाँ आकर झांका तक नहीं था। यूं सबके सामने उसे नजरअंदाज करके वो क्या साबित करना चाह रही थी, इसका जवाब अमजद की समझ में नहीं आ रहा था, और उसका गुस्सा भड़काने के लिए ये बात काफी थी। सजीला, अब के उसकी आवाज में इतनी तपिश थी कि सजीला को आते ही बन पड़ा। हालांकि वो उसे डरती वरती जरा भी नहीं थी। क्या मुसीबत है, क्यों चीख रहे हो? इतनी बेइज्जती करके दिल नहीं भरा क्या? बेहद गुस्से के साथ उसने कहा। अमजद की बर्दाश्त यहीं तक थी। इसके बाद सजीला को उसने बेनकस सुना डाली। सजीला को उसकी हरकतों का एहसास दिलाने से लेकर फजूल खर्ची में रुपया उड़ाने तक का ताना दे डाला। वो भी पहले तो बराबर से जवाब देती रही, फिर जब थक गई तो चीख चीख के रोना शुरू कर दिया।
बाहर जुमला अहला खाना ने इस मार्के को हर्फ ब हर्फ सुना था। सजीला के रोने की आवाज ने गोया लाइन क्लियर होने का इशारा दिया। सजीला के रोने की आवाज ने गोया लाइन क्लियर होने का इशारा दिया। सभी एक एक करके अंदर गए और जो कमरे की वसत में ना समा सके वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर सूरत हाल का अंदाजा लगाने लगे। ठंडे होकर बात करो अमजद, हंगामा क्यों कर रहे हो? अमीना आपा ने माहौल साजगार करने की कोशिश की, जो कि जाहिर है कि नाकाम हुई। सजीला रो रो कर बता रही थी कि अमजद उस पर किस कदर बेबुनियाद शक करता है और बेजा पाबंदियां आयद करता है। हालांकि ये सब वो लोग खुद अपने कानों से सुन चुके थे, मगर इस वक्त अनजान बनकर चिच चिच करने लगे। अब क्या इंसान अजीज रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी छोड़ दे? सजीला आंखों में आंसू भरे बड़ी मासूमियत से बब्बू भाई से पूछ रही थी और अजीज रिश्तेदारों की कैटेगरी में आने वाले अपने चेहरों पर जमाने भर की मजलूमियत लिए उसे देखे जा रहे थे। ऐसे लफंगों की रिश्तेदारी तुम्हें ही मुबारक हो, मेरा ना कोई। अमजद का जुमला पूरा होने से पहले ही शोर मच गया। उसके आगे के मुकदमे में बब्बू भाई भी फरीक बन गए। उनके मुअज्जिज मेहमानों पर डायरेक्ट अटैक किया गया था, वो कैसे चुप रहते? बात बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि बब्बू भाई ने अपने घर में रहने का ताना दे ही डाला। अपने घर में पाबंदियां लगाना, मेरी छत के नीचे बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। इन सब लोगों के दरमियान जिनसे वो अब बुरी तरह चिढ़ने लगा था, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करना उसके बर्दाश्त से बाहर था। ऐसी सिचुएशन से उसका पहला कभी सांप भी नहीं पड़ा था। कोने में पड़े अपने बैग में वो चंद कपड़े उसने बहुत तेजी से डाले और जो खूंटी पर टंगे हुए थे उसे उठाकर गेट की तरफ बढ़ गया। अमजद कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो। सजीला बदहवासी होकर उसके पीछे भागी। वो बाइक स्टार्ट कर चुका था। मैं क्या? सजीला के मुंह से अल्फाज पूरी तरह अदा नहीं हो पा रहे थे। उसकी छठी हिस्स बार बार कह रही थी कि अगर आज अमजद उसे यहाँ छोड़कर चला गया तो वो जिंदगी भर इस दहलीज पर बैठी रह जाएगी, और ये इतनी बड़ी बाजी वो इस तरह जीत कर हारना नहीं चाहती थी। अमजद ने एक निगाह उसके बहते हुए आंसुओं पर डाली और फिर उसे पीछे हटने का इशारा किया। अंदर से किसी ने आकर यह सवाल नहीं किया था कि इस बिगड़े हुए मौसम में तुम दोनों आखिर कहाँ जाओगे। बाइक की बदतरीज होती आवाज ने जाहिर कर दिया था कि वो यहाँ से जा चुके हैं। बब्बू भाई ने फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए अपनी बीवी को देखा और बोले, देखा अमीना, कैसे मिनटों में इंतजाम किया तेरी बहन को उसके ससुराल पहुंचवाने का। ये अमजद का बच्चा तो अभी 6 महीने और लगा देता। इस अंधेरी बरसती सर्द रात में वो एक बार फिर इसी दरवाजे के आगे जा खड़ा हुआ जहां से वो बड़े जोम से निकला था, और कुछ ही अरसे में ये जान गया था कि उसके लिए इस घर से बढ़कर जाए पना कोई दूसरी जगह नहीं है, और खुद उसकी अपनी हैसियत भी इस घर के हवाले के बगैर बहुत हल्की पड़ जाती है। शायद लाइट गई हुई थी। अमजद ने जोर से गेट को बजाया। जिंदगी अपने दामन में हमारे लिए क्या कुछ समेटे हुए है, इंसान कभी भी नहीं जान सकता, बस अंदाजे लगा सकता है। सब लगाता रहता है, जो कभी गलत और कभी सही। सारा ने गाड़ी की सीट की पूंछ से सर टिकाते हुए सोचा, कितने सोच विचार से किए जाने वाले फैसले जिंदगी आराम से रद्द कर देती है। रिश्तों की मजबूत डोर भी कमजोर धागे की मानिंद ही रह जाती है। हालात, वाकियात, मुफादात सभी किस कदर बदल जाते हैं, और फिर आता है मुकाम खुद एहतसाबी। लीजिए साहब, अब खुद बैठकर अपने नफे नुकसान का हिसाब किताब कर लीजिए, पर ईमानदारी के साथ। क्या बात है सारा, इतनी खामोश क्यों हो? गाड़ी चलाते हुए हैदर ने उसकी खामोशी को नोट किया। कुछ नहीं हैदर भाई, बस ऐसे ही जरा थक गई हूँ। वो भाई का दिल रखने को मुस्कुरा दी। हैदर अब एक बेहद जिम्मेदार बेटे और भाई का रोल निभा रहा था। अमजद की नाफरमानी के बाद वो रिश्तों के बारे में अपने रवैये में हसास हो चला था। और ये हमारी गुड़िया सो गई है भई? उसने सारा की 2.5 साला बेटी को प्यार से देखा, जो अगली सीट पर नाना की गोद में थी। वो सब नगीन के वलीमे से वापिस आ रहे थे। सारा अब रियाज में सेटल थी, साल में 1 बार आती थी, लेकिन इस मर्तबा ये दूसरा चक्कर था। 6 माह पहले हैदर की शादी में शोहर के साथ आना हुआ था, और अब नगीन की शादी की इत्तला पहुंची तो खुद को आने से रोक ना सकी। मियाँ की छुट्टियों का कुछ मसला था, सो वो बच्ची को लेकर चली आई। बस अब कुछ दिन बिल्कुल रेस्ट करना, नगीन की शादी ने तो तुम्हें थका ही दिया। हैदर की बीवी लुबना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और हकीकत थी पिछले 1 हफ्ते से वो हर पल नगीन के साथ रही। शादी की इख्तितामी तैयारियों से लेकर उसकी रुखसती तक वो उसका साया बनी रही। मैं और नगीन बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब हैं भाभी, बहुत वक्त एक साथ गुजारा है, कभी सोचा भी नहीं था कि यूं दूर हो जाएंगे। हैदर को सामने लगे मिरर में पीछे बैठी सारा नजर आ रही थी। उसकी आंखों में चमकने वाले आंसू अंधेरे में भी नुमाया थे। वैसे एक बात है, नगीन लग बहुत जबरदस्त रही थी। क्यों सारा? हैदर ने माहौल को लाइट करना चाहा तो सारा भी कुछ रिलैक्स हो गई। वो है ही इतनी अच्छी, और अदी भी तो कम नहीं था। इतना खुश मिजाज और अपनाइये से मिलने वाला है। नगीन बहुत खुश रहेगी।
इंशाल्लाह। मामू जान जो खामोशी से उन सबकी बातें सुन रहे थे धीरे से बोले, नगीन की शादी का फर्ज अदा हो गया था और बहुत खुशसलूबी से हुआ था। उनके सारे वजूद में आज इत्मीनान की लहर दौड़ी हुई थी। नगीन के मास्टर्स करने और फिर लेक्चरशिप हासिल करने में जो ये 3-4 साल गए थे, उसमें वो बहुत मुस्तरिब रहते थे। उन्हें उसकी शादी की जल्दी थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई को तरजीह दे रही थी और यकीनन उसका फैसला सही था। तमाम कॉम्प्लेक्सेस से आज़ाद एक कामयाब लड़की के रूप में वो जिंदगी को बरतने का बेहतर शऊर हासिल कर चुकी थी। सारा की निगाहों में नगीन का आज का सरापा घूम रहा था। खुशी उसके चेहरे, उसकी आंखों, उसकी हर हर अदा से जाहिर थी। नगीन जैसी लड़की के लिए तो कोई भी शख्स सारी जिंदगी इंतजार में गुजार सकता है। ये तो बस चंद साल की बात थी। अदी ने मुस्कुराते हुए आज उसे स्टेज पर कहा था, जब सारा ने उसकी इस्तकामत की दाद भी दी। घर आ चुका था। गाड़ी से उतरकर जब वो अंदर जा रहे थे तो ऊपरी मंजिल के हंगामे की आवाजें बखूबी सुनाई दे रही थीं। वो सब लोग इसके आदी हो चुके थे। सब बगैर किसी रद्द अमल के लाउंज में आ बैठे। मुमानी जान जरूर सीढ़ियों के पास खड़ी होकर ऊपर की सीम देखने लगी। बर्तनों और दूसरी चीजों के फेंकने की आवाजें तसलसल के साथ जारी थीं। घर से उठा ये शोर पड़ोसियों को किस कदर मुतवज्जा रखता होगा, इसका एहसास ना सजीला को था और ना अमजद को। सारा दिन घर से गायब रहती है और पूछो तो जुबान चलाती है। जिंदगी अजाब बनकर रह गई है मेरी। अमजद बकता झकता नीचे आ रहा था। इन लोगों को लाउंज में देखकर वो ठटक गया। मामू जान उसे देखते ही उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। अमजद का चेहरा उन्हें यूं बेनियाज देखकर अभी भी फीका पड़ जाता था। इस रात अमजद को यूं बेबसी के आलम में अपने घर के दरवाजे पर देखकर उन्होंने उसे अंदर तो आने दिया था, मगर अपने दिल तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया था। वो उससे बेहद मजबूरी के आलम में एक आध बात करते थे और बस अमजद की घर गहरेस्ती ऊपरी मंजिल तक महदूद थी। अमजद को यूं शर्मिंदा सा खड़ा देखकर सारा को सचमुच रंज होने लगा। हालांकि नगीन को भी ठुकराने के जुर्म में वो अभी तक अपने दिल में भाई से खफगी रखे हुए थी, पर अब जिंदगी जिस बुरी तरह उसे आजमा रही थी, ये भी कम नहीं था। सारा उसकी दिलजोई के लिए कुछ कहना चाह रही थी कि पीछे से सजीला आ खड़ी हुई। उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। वो अमजद को तंग नजर, शक्की मिजाज और नफ्सियाती मरीज ठहरा रही थी। उसकी वो दिल नशीन गुफ्तगू और मुस्कुराहट जिसने अमजद को असीर किया था, बड़ी जल्दी साथ छोड़ गई थी। अमजद ने नीचे इन लोगों को देखकर बेबसी से शाने उचकाए और वापस मुड़ गया। सारा के दिल में ही रह गई। उसने बहुत तासुब के साथ अमजद को ऊपरी सीढ़ियों पर चढ़ते देखा। ऊपर पहुंचकर उसने अपने पीछे से दरवाजा बंद कर लिया था। सारा ने सोचा कि जिंदगी फीके पड़ते रंगों में दिल की अफसुर्दगी मिटाने के लिए अल्लाह जाने कितने हौसले की जरूरत पड़ती होगी, मगर इतना तो तय था कि ऊपर उस बंद दरवाजे के पीछे बसने वाले इन दो अफराद को इस हौसले की बेहद जरूरत थी। ये नॉवल कंप्लीट हो गया और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी।